Nation of Israel was living in the land of Egypt. और इज़राइल के जो देश है जो वो मिस्र के देश में जी रहे थे They were inundated by negativity all around them. और वो नकारात्मकता से पूरी तरह से सभी जगह से हावी थे. And in the midst of this negative atmosphere, और इस नकारे माहौल में there comes to them a good news of deliverance. उसके बीचों बीच छुटकारे का समाचार उनके लिए आ जाता है. As I told you before the break, और जैसे ब्रेक के पहले मैंने आपको बताया we have got two enemies. कि हमारे दो दुश्मन हैं. One is the devil, पहला है शैतान and the second one is our flesh. और दूसरा है हमारा शरीर. Amen. आमीन. If you observe, अगर आप ध्यान दोगे your flesh never likes anything good. आपके शरीर को कभी भी कुछ अच्छा पसंद नहीं होता. If you decide, if you got a big paunch, if you want to reduce your paunch, you put it inside, you want to go for exercise, your body will never like to do that. हाँ, अगर आपका पेट बड़ा हो चुका है और आप तय करते हो कि आप इस पेट को कम करेंगे तो आपका शरीर जो है वैसा आपको नहीं करने देगा. Your body will never like you to go to school, to college, आपका शरीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, to go to work, काम को जाए, to do business. बिजनेस करे. It likes to sleep. उसे बस सोने को पसंद है. Just likes to sleep the whole day. उसे पसंद है कि दिन भर लेटे रहे. I know of some people, if I don't wake them up, they will never get up. और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि अगर मैं उन्हें नहीं उठाऊंगा तो वो कभी नहीं उठेंगे. They will never get up. हाँ, वो कभी नहीं उठेंगे. Even sleep will get tired being with them. और उनके साथ रहते हुए नींद जो है नींद भी थक जाएगी. And नींद will go, the sleep will run away, but they will never get up. और नींद तो भाग जाएगी लेकिन ये कब नहीं उठेंगे. So people, listen, the body likes to to take you to the dumps. और इस शरीर को पसंद है कि आपको कचरे में ही ले जाए. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. So whether you may be a believer in the Lord or not a believer in the Lord, आप मसीह को जानने वाले हो या विश्वासी हो या ना हो, your body never likes to do good. आपके शरीर को कभी भी कुछ अच्छा करना पसंद नहीं है. So listen, everybody. तो सभी जन सुनो. Supposing if I decide to go for exercise from tomorrow, उदाहरण के तौर पर मैं तय करता हूँ कि कल से मैं कसरत करूंगा. or if I am even a regular gym goer, even if I do exercise, और अगर मैं नियमित रीति से जिम को जाता हूँ, नियमित रीति से कसरत करता हूँ तो भी to get up in the morning and go for exercise, सवेरे उठकर कसरत को जाने के लिए the body doesn't like that. अपने शरीर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. Hear this, everybody. अब ये सभी जन सुनो. So our flesh, it's ours, but not on our side. तो हमारा शरीर जो है वो हमारा है लेकिन हमारे बाजू से नहीं है. How many agree with me? Come on. कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? Amen. आमीन. Look at your own tummies. आपके खुद के पेट के पास देखो Look at your own love handles. और आपके लव हैंडल के पास देखो. कसे बाहेर आलेत बघा असे हंडीचे कड्या बाहेर आलेत. Flesh is ours, हाँ, शरीर हमारा है but it is not on our side. लेकिन वो हमारे बाजू से नहीं है. And the more we listen to the flesh, obey the flesh, और जितना ज्यादा हम शरीर के सुनते हैं या फिर उसका आज्ञा पालन करते हैं, that much more our flesh will take us down the drain. उतना ही ज्यादा हमारा शरीर जो है हमें और नाले में नीचे ले जाएगा. For a simple example, एक छोटा सा उदाहरण I दूं was just तो saying Satish inside over there, मैं अंदर क्षितिज को वहां पर कह रहा था that people who, if you eat, say, sweet before sleeping in the night, जो लोग सोने से पहले रात को मीठा खाते हैं, if you find that those people the next day onwards after that, अगर आप उन लोगों को देखोगे कि उस दिन से अगले दिन सवेरे से आगे they will want to eat more sweet. वो और ज्यादा मीठा खाना चाहते हैं. Yeah, more sweet. हाँ, ज्यादा मीठा. It is not they craving for the sweet. और ये ऐसा नहीं कि उन्हें वो मिठास चाहिए. No. नहीं. It is their body is creating that craving for their sweet. लेकिन वो उनका शरीर है जो उस मीठा खाने के लिए
की मीठा खाने की जो भूख है वो उसे बढ़ा रहा है। Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, you can just think about आप this. इसके बारे में बस सोच सकते हो How our flesh is. कि हमारा शरीर कैसा है। It is, if we keep this flesh in check, अगर हम इस शरीर को नियंत्रण में रखेंगे it'll be one of our best allies. तो फिर वो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त बनेगा। Amen. आमीन। But if we do not keep this flesh in check, लेकिन अगर हम इस शरीर को नियंत्रण में नहीं रखेंगे we are doomed. तो फिर हम खल्लास में जमा है। Now listen, everybody. तो सभी जन सुनो, The people of Israel living in the land of Egypt, और इज़राइल राष्ट्र जो थे, जो मिस्र देश में जी रहे थे, they were living amongst negativity. वो तो नकारेपन में जी रहे थे And their flesh was learning from that negativity. और उनका देह या फिर शरीर जो है उस नकारेपन से सीख रहा था। Whenever you keep somebody in a particular atmosphere, जब कभी भी आप किसी को भी किसी भी माहौल में रखते हो, that person learns from that. वो इंसान जो है या फिर वो व्यक्ति जो है उस माहौल से सीखता है। How many remember this one small proverb? One spoiled apple destroys or spoils the rest in the basket. और कितने लोगों को ये वाक्य पता है कि एक खराब सेब जो है वो बास्केट में रखे हुए सारे सेबों को खराब कर देता How है। many believe? How many know that? कितने लोग को ये जान Amen. कितने लोग ये जानते हैं? आमीन। Why it doesn't happen the opposite? लेकिन उल्टा क्यों नहीं होता? There are supposing 10 good apples कल्पना करो कि 10 अच्छे सेब है and one spoiled apple comes there. और एक खराब सेब वहां पर आता है। Why don't the power of 10 good apples improvise the spoiled apple? तो फिर वो 10 अच्छे सेब का सामर्थ्य से वो एक खराब जो सेब है वो अच्छा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं ऐसा होता? होना चाहिए ना। 10 अच्छे है, एक बुरा है, तो 10 अच्छे मिलकर उस एक बुरे को सुधार क्यों नहीं सकते? आमीन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमीन। Amen? आमीन। Why? क्यों? Think about it. इसके बारे में सोचो। Because it is the nature of an apple to degrade as time goes by. क्योंकि ये सेब की एक फितरत ही है कि जैसे वक्त बीतता है वो खराब होता जाए। People of God, परमेश्वर के लोगों, in this entire इस universe, पूरे दुनिया में ब्रह्मांड में it is the unwritten law of God. वहां पर एक न दिखने वाला एक नियम लिखा हुआ है। You have to maintain something. कुछ चीजों को आपको बनाए रखना जरूरी है। You have to maintain everything. आपको सब कुछ बनाए रखना जरूरी है। The Lord said when God gave man this earth, और खुदा अपने वचन में कहता है कि खुदा ने जब इंसान को इस धरती दे दिया, He said to man, उसने इंसान से कहा replenish this earth. कि इसे बनाए रख। Means tela naveen theo. The word meaning replenish means keep it brand new as it is. और अंग्रेजी में रिप्लेनिश का शब्द का अर्थ है कि उसे नया नवेला जैसा का वैसे उसे रखना है। जसं मी तुला ती पृथ्वी देतोय तिला तशी ठेव. Means replenish. इसका अर्थ है रिप्लेनिश। Means I have to work on it. Tell your neighbor, I have to work on it. इसका मतलब मुझे उस पर काम करना है। आपके बाजू वाले से कहो मुझे उस पर काम करना है। बोलो मुझे उस पे काम करना है बोलो। मुझे उस पे काम करना है। Amen. Amen. Now hear this everybody. अब ये सभी जन सुनो। Very important point. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा When है। the nation of Israel was living in that negative atmosphere, जब इज़राइल राष्ट्र उस नकारे माहौल में जी रहे थे, their DNA got engrafted by negativity. उनका डीएनए जो है उसमें नकारापन घुस गया। Yeah. हाँ, वो नकारेपन से सिलाए गए। One generation after one generation got more and more negative. एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी जो है वो और नकारा बनता गया। That first generation that came to Goshen, जो पहली पीढ़ी जो गोशेन आए, they were a positive people. वो तो सकारे लोग थे। They were a people of Joseph. वो तो यूसुफ के लोग थे। They had seen God work in a mighty way through their son, through their brother. और उन्होंने तो परमेश्वर को देखा था कि उनके बेटों के द्वारा, उनके भाई के द्वारा महान तरीके से काम करते हुए। Amen. Amen. From the
jail to the prime minister. और जेल से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हुए They had seen Joseph arise. उन्होंने देखा था यूसुफ को बढ़ते हुए। Amen. Amen. But as time went by, लेकिन जैसे समय बीता, as Joseph passed away, जैसे यूसुफ मर गया, as their stories passed away, जैसे उनकी कहानियां चले गए, people of God, परमेश्वर के लोगों, the people began to adopt the Egyptian culture in their life. और लोग जो है जो जिस तरीके से मिस्री जीते हैं उस जीवन शैली को उनके जिंदगी में गोद लेने लगे। People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever we start accepting the worldly ways in our lives, और जब कभी भी इस दुनिया के तौर तरीके हम अपने जिंदगी में स्वीकार लेते हैं, we start becoming pillars of salt. हम नमक के खंभे बनने लगते हैं। Salt has to free flow. और नमक जो है वो आसानी से बहना चाहिए। Yeah. हाँ। You cannot have blocks of salt. वहां पर नमक के पत्थर नहीं बन सकते, You cannot have it. वहां पर नहीं हो सकते। आपके पास नमक के पत्थर होना गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Salt has to free flow. नमक को तो आसानी से बहना चाहिए। Amen. Amen. So the biggest property of salt is free flowing. और नमक की सबसे बड़ी फितरत यह है कि वो आसानी से बहता है। So when as believers, if we are salt of this earth, तो एक मसीह के होने के नाते या फिर विश्वासी होने के नाते जो हम इस धरती के नमक है, and if we have become a pillar, if I become a block, और अगर हम एक खंबे बन गए, हम एक पत्थर बन गए हैं, that means the things of this world have come inside of me. इसका मतलब यह है कि इस दुनिया के तौर तरीके मुझ में आ चुके हैं। Now hear this, everybody. अब सब जन So the सुनो, moment these things come inside of me, और जैसे ये सारी चीजें मुझ में आ जाते हैं, and when God is trying to work in my life, और जब खुदा मेरे जिंदगी में कार्य करने की कोशिश कर रहा है, yeah, बोलो जोर से, कोशिश कर रहा है, बोलो कोशिश कर रहा जोर है, से, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। देव माझ्या जीवनामध्ये कार्य करायचा प्रयत्न करत आहे, तर त्या प्रयत्नाला मी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे। तो खुदा मेरे जिंदगी में काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उस कोशिश को मुझे प्रतिक्रिया देना जरूरी है, प्रोत्साहन देना जरूरी है। कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन। देवाच्या त्या कार्याला मला प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे। और खुदा के उस कार्य को मुझे प्रोत्साहन देना अनिवार्य है। आमेन। आमेन। But the problem is, लेकिन समस्या यह है, my flesh doesn't like it. मेरा शरीर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। Satan doesn't like it. That's a different thing. शैतान को यह पसंद नहीं है, तो अलग ही बात है। But जे माझा आहे त्यालाच आवडत नाहीये माझी सुटका व्हावी। लेकिन जो मेरा है उसी को पसंद नहीं है कि मैं आजाद हो जाऊं। जो मेरा है, जिसको मैं पालता हूं, पोसता हूं, घिसता हूं, साफ करता हूं, उसको ही पसंद नहीं है कि मैं आगे जाऊं। आमेन। Then if what is mine doesn't like good of mine, then who is mine? तो जो मेरा है और जो मुझ में मेरे लिए अच्छा है उसे वो पसंद नहीं है, तो फिर मेरा कौन है? या मग माझं राहिलं कोण? तो मेरा बचा कौन? जो मेरा है, जिसको मैं खिलाता हूं, पिलाता हूं, नहलाता हूं, धोता हूं, घिसता हूं, जिसको इतना संभाल के इतना बड़ा करता हूं, उसको ही पसंद नहीं मेरी अच्छाई, तो फिर मेरा रहा कौन? आमेन। कभी किससे बात करोगे यहाँ पर? Come on. Amen. 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 People of God, think about it. परमेश्वर के लोगों इसके बारे में सोचो। That's why the Bible says, by the power of the Holy Spirit, modify the deeds of the flesh. और इसीलिए तो बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा शरीर के लालसाओं को मार दो। शरीर के लालसाओं को मार दो, जोर से मार दो। मार दो का मतलब क्या होता है? मार दो। You know, आपको पता है, I don't know if you got a musk growing somewhere on your body. और मुझे नहीं पता कि आपके शरीर पे कहीं पर मस्सा बढ़ रहा है। If there's a musk growing on your body, अगर आपके शरीर पे कहीं पर भी मस्सा बढ़ रहा है, there is a best way to remove it. Best way. उसे निकालने का सबसे बेहतरीन एक तरीका है। You don't need to go to any doctor. आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। Dr. Alvin can help you in that. डॉक्टर एल्विन आपको उसमें मदद कर सकता है। Simple. आसान है। Take a thread एक धागा ले लो and tie it at the start of that muss. और जो मस्सा शुरू हो रहा है उसके एकदम वही शुरुआत में उसे बांध दो और कस के बांध दो और उसको वैसा ही बंधा रखो. Keep it tied. और उसे वैसे ही बंधा रखो।
for whole 1 day, 2 days. पूरे 1-2 दिन के लिए, In 2 days, it will fall off 2 ही दिन में वो गिर जाएगा, because you are cutting the blood supply. क्योंकि लहू का बहना जो है वही आप काट रहे हो. Bina operation, bina anesthesia, done, Dr. Alvin. Amen. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो, That's called murder. That's called killing. That's called die, kill, die. इसे कहते हैं मार देना, इसे कहता है मर्डर, इसे कहना है पूरी तरह से खत्म करना. Amen. Amen. See, the nation of Israel left the land of Egypt, देखो इज़राइल राष्ट्र जो है वो मिस्र देश तो छोड़ निकले, but just because they didn't die to their flesh, लेकिन बस इस वजह से कि वो उनके शरीर के लालसाओं के मरे नहीं, they couldn't inherit. That whole generation could not go in the promised land along with Moses. वो पूरी पीढ़ी जो है मूसा के साथ वो वचनदत्त भूमि में नहीं जा पाए. वो गए तो गए, मूसा को भी लेके ले चले गए. आमेन, आमेन. That's what happens. Now, can I say something over here? Come on. क्या It's मैं यहाँ पर coming कुछ कह live. It's सकता हूँ? coming live to me. यहाँ पर अब ताजा आ रहा है, Can I give it to you? क्या मैं वो आपको दे सकता हूँ? Now वाला वक्त विचारतोय मी. Amen. Listen, everybody. सभी जन सुनो, That's what happens when you tag along with people who are led by the flesh. Come और on. यही होता है जब आप उन लोगों के साथ रहते हो जो उनके शरीर के लालसाओं से चलाए जाते हैं. या जे लोक त्यांच्या देहाद्वारे चालवले जातात, मग तुम्ही किती आत्म्यामध्ये मोशे असू द्या, ते लोक तुम्हाला जे वचनबद्ध भूमी आहे त्याच्यामध्ये घुसू पण देणार नाही. अगर आप नकारे लोगों के साथ चलोगे तो फिर आप कितने भी मूसा की तरह रहो तो भी नकारे नहीं, देही शरीर में जो रहते हैं, जो शरीर में रहते हैं ऐसे लोगों के साथ अगर आप निवास करोगे, रहोगे, तो आप कितने मूसा की तरह भी रहो तो भी वो आपको उस वचनदत्त भूमि में नहीं ले जाने तुम्ही देंगे. किती अभिषिक्त असू द्या, you may be greatly anointed by God, but you will not be able to go into your promised land. Why? Because you are tagging with the people who are led by their flesh. आप चाहे कितने भी अभिषिक्त हो और परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया हो, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ जी रहे हो जो शरीर के लालसाओं से चलाए जा रहे हो, तो फिर आप वचनदत्त भूमि में कभी नहीं जाओगे. You may be an ocean divider. आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो समुद्र को 2 भाग में करने वाले होंगे. Yeah, ocean divider. हाँ, समुद्र को 2 भाग में But करने if you are वाले. tagging with somebody who is led by the flesh, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो शरीर के लालसाओं से चलाए जा रहे हैं, you will never make it to your promised land. तो फिर आप आपके वचनदत्त भूमि तक कभी नहीं पहुंचोगे. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand how important it is that we deal with our second enemy, the flesh. और ये समझ लो कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम हमारे दूसरे दुश्मन पर कार्य करें, And that is our और flesh. वो है हमारा देह या फिर शरीर. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this, everybody. ये सभी जन सुनो. So when the nation of Israel got introduced to the plan of God, तो जब इस्राएल राष्ट्र की पहचान परमेश्वर की योजना के साथ हुई, they could not process it so well. वो उस पर काम कर ही नहीं पाए ठीक से. Let's open our Bibles, everybody, to James chapter 4 आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे याकूब की पत्री इसका 4था अध्याय, and verse 7. James 4 verse 7. और याकूब की पत्री इसका 4था अध्याय वचन 7. याकूब की पत्री इसका 4था अध्याय वचन 7. Don't miss a single word from this verse. It's very important. और इस वचन से एक भी शब्द मत गवाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण है. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का विरोध करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. Now listen, to deal with the first enemy, please don't miss this. अब सुनो, पहले दुश्मन के ऊपर काम करने के लिए कृपया कर सभी जन इसे मत गवा. सभी जन सुनो, The first enemy is the devil. जो पहला दुश्मन है वो है शैतान. To deal with the first enemy, the devil, और पहले दुश्मन जो हमारा शैतान है उसके ऊपर काम करने, उसके साथ उसे संभालने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उसको हकालने के लिए, I need to first deal with my second enemy. और उसे हकालने के लिए सबसे पहले मुझे मेरे दूसरे दुश्मन पर काम करना पड़ेगा. Amen. आमीन. The Bible says, बाइबल कहता है, submit yourselves therefore unto God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ. Come here. Submit yourselves. Submit yourselves.
आधीन हो जाओ, समर्पित करो, खुद को समर्पित करो। When this is you, imagine this is you. कल्पना करो कि ये आप हो, ये आप हो, So submit yourselves. तो खुद को आधीन या फिर समर्पित करो। Means what? इसका अर्थ क्या है? Not just your spirit, सिर्फ आपकी आत्मा नहीं, not just your soul, सिर्फ आपका जी नहीं, but even your body. लेकिन आपके शरीर भी, This wiggling body, ये आपका चलता फिरता शरीर, wiggling, वळवळ करणारा, वळवळ करणारी. ये आपके वळवळ करने वाला शरीर जो है, Yeah, that makes you always go, accept the will of God everywhere. जो आपको हमेशा ले जाता है सभी जगह पर, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को छोड़। Amen. आमेन। Take this body and submit yourselves to God. इस शरीर को भी लो और खुद को परमेश्वर के अधीन या फिर परमेश्वर के सामने समर्पित कर दो। Amen. आमेन। This submission, submission to God is worship. देखो, ये परमेश्वर के सामने अधीन होना या फिर समर्पित करना, ये है आराधना। Worship is not singing songs. और आराधना करना इसका अर्थ ये नहीं कि गाना गाना है। Worship to God means I give myself in submission to God. लेकिन परमेश्वर की ओर आराधना करने का अर्थ यह है कि हे परमेश्वर, मैं खुद को तेरे अधीन कर देता हूं, समर्पित कर देता हूं। Whatever your word says, जो कुछ भी आपका वचन कहता है, I will do it. मैं वो करूंगा। I train my flesh to obey your word. मैं मेरे शरीर को प्रशिक्षण दूंगा तेरे वचनों का, आज्ञा का पालन करने के लिए। मी माझ्या शरीराला तुझ्या वचनाचं आज्ञा पालन करायला प्रशिक्षण देईल. एका दिवसात होत नाही. बोला बाजूवाल्याला, एका दिवसात होत नाही। बोला पुन्हा एकदा. एका दिवसात होत नाही। बँगलोरला रिवायवल मीटिंग आहे, गेलो तिथं 10 दिवस रिवायवल मीटिंग केली, परत आलो, शरीर काय म्हणतात त्याला ते मराठीमध्ये, समर्पित झालं. नाही होणार तसं. 10 दिवसाची 10 दिन की रिवाइवल मीटिंग करके किसी का भी शरीर समर्पित होता नहीं है. ये एक रोज का सराव है, प्रैक्टिस है. आमेन। करना पड़ेगा. आमेन। जैसे हर दिन अगर मुझे मसल बढ़ाना है तो मुझे हर दिन जिम जाना होगा. नॉट इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट. तीव्रता नहीं, लेकिन हर दिन करना ये जरूरी है. आमेन। आमेन. आमेन। कोई बहुत सुकड़ा है, उसको 10 किलो चावल, 20 किलो मटन, 30 किलो और क्या क्या खाने को देंगे. खा, आज का दिन खा, कल मोटा हो जा. ऐसा नहीं होता है. आमेन। कंसिस्टेंसी, हर बार बार करते रहना. या हर दिन. So I have to get my flesh into submission to God. तो मुझे मेरे शरीर को परमेश्वर के अधीन ले आना है. The nation of Israel was led by God. और इस्राएल राष्ट्र को तो परमेश्वर चला रहा था. But they did not get their flesh under submission to God. लेकिन उन्होंने अपने शरीर को परमेश्वर के अधीन वो नहीं ले आए. Why? क्यों? Because their minds were in the world. क्योंकि उनके मन जो थे वो इस दुनिया में थे. According to Romans 12:2, और रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय वचन 2 के अनुसार they were confounded to the nation of Egypt. वो तो मिस्र देश से जुड़े हुए थे. Yeah, in their minds. हाँ, उनके मनों में. Bodily they were out of Egypt. शरीर के तौर पर तो वो तो मिस्र के बाहर थे. Bodily they were coming to church. और शरीर के तौर पर तो वो कलीसिया में आ रहे थे. But in their minds, लेकिन उनके मनों में, the nation of Egypt was leading and ruling over them. लेकिन उनके मनों में मिस्र देश जो था उनकी अगुवाई कर रहा था, उन पर राज्य कर रहा The था. lifestyle of Egypt was leading over them. और मिस्र की जीवन शैली उन्हें वहां पर उनके मनों में चला रहा था. People of God, परमेश्वर के लोगों, every Egyptian festival, every Egyptian situation was in their mind and from their mind, in their flesh, in their blood. और हर एक मिस्री त्योहार और हर एक
एक मिस्री चीज है वो उनके मनों में और उनके खून में था। People of God, परमेश्वर के लोगों, though they were being led by God, हाँ उनकी अगुवाई परमेश्वर की ओर से हो रही थी, but in their minds and in their bodies, लेकिन उनके मनों में, उनके शरीरों में they desired Egypt. उन्हें तो मिस्र की लालसा थी। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन सुनो, You and I belong to a bloodline. आप और Part 2. और आप और मैं एक लहू के लकीर के भाग है, भाग 2। Listen everybody. सभी जन सुनो, The first one, part 1 is, और पहला भाग ये है don't step outside the bloodline. कि उस लहू के लकीर के बाहर कदम मत रखो। Now part 2 everybody. अब है भाग 2 सभी जन। We are a part of a bloodline. हम एक लहू के लकीर के भाग है। Yeah. हाँ, We are a part of a bloodline. हम एक लहू के लकीर के भाग है। Actually, that Hindi translation is not right. I will correct him afterwards. और ये हिंदी भाषांतर जो है, अनुवाद जो है वो सही नहीं है, उसे मैं सही बाद में करूंगा, But say it for now. लेकिन अभी के लिए वो बता दे। We are a part of a bloodline. हम एक लहू के लकीर के भाग है। John 15, everybody. और यूहन्ना इसका 15वां अध्याय And verses 1 onwards. और वचन 1 से आगे, I am the true vine and my father is a husbandman. और सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। Every branch in me, come on. हर डाली जो मुझ में है, चलो, Every branch in me जो डाली मुझ में है beareth not fruit. और नहीं फलती, He taketh away. उसे वह काट डालता है। I belong to a bloodline. और मैं एक लहू के लकीर का भाग हूं। हिंदी में अभी मैं कह रहा हूं, मैं एक वंश से जुड़ा हुआ हूं। आमीन। एक वंश से, और उस वंश का नाम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। आमीन। Come on! चलो, आमीन। People of God, परमेश्वर के लोगों, when we came in God, और जब हम खुदा में आए, listen everybody, this is very interesting. सभी जन सुनो, ये बहुत ही रोमांचक है। I was Egypt. I was in my bloodstream full of Egypt. और मैं तो मिस्र में था, और मेरे लहू में, मेरे खून में, मेरे ज़हन में तो सिर्फ मिस्र 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 और मिस्र ही था। Why so? I even walked like an Egyptian. और उतना क्यों, मैं तो एक मिस्र के समान चलता था। You know, listen everybody. Asal Everything so. was me, Egypt. और मुझ में सब कुछ मिस्र 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 ही था। But the moment God took hold of me, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया, and God cut me from Egypt और खुदा ने मुझे मिस्र से काट दिया, and grafted me in the true vine, और मुझे सच्ची दाखलता में कलम कर दिया, and that is the Lord Jesus और Christ. वह है प्रभु यीशु मसीह। Now it becomes my job अब मेरा कर्तव्य है to die to Egypt and let the blood of God, the blood of the Lord Jesus Christ flow through every being in my life. अब मेरा कर्तव्य है कि मैं मिस्र के लिए और मिस्र की तरफ मैं मर जाऊं, और प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है मुझ में, मेरे ज़हन में, मुझ में पूरी तरह से संभालूं और खुदा के लिए जीऊं। म्हणजे जे काही सैतानी कामं जे मी करत होतो ना, या ख्रिस्तामध्ये यायच्या आधी मला त्या कामांना मरायचंय, मला त्या सगळ्या गुणधर्मांना मरायचंय, मला त्या आळसाला मरायचंय, मला त्या कंटाळाला मरायचंय, मला त्या सगळ्या गोष्टी ज्याला देव आवडत नाही त्या सगळ्या गोष्टींना मला मरायचं आहे, आणि मला ख्रिस्ताच्या जीवनाला माझ्या जीवनामध्ये वाढवायचं आहे। ह्याला म्हणतात येशूमध्ये कलम केलेला। आमेन। कोणी मोठ्याने आमेन म्हणाल का? चला आमेन। मला जे काही नकारात्मक गोष्टी मी करत होतो ना, सैतानी गोष्टी, उन सारे चीजों को मुझे मारना है, खुदा नहीं मारेगा। आमेन। मैं जो झूठ बोलता हूं वो मुझे मारना है। आमेन। अभी कोई आमेन नहीं चिल्लाएगा जोर से। हाँ, तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं क्या मैं? नहीं, जो बाहर खड़े उनके बारे में। आप अच्छे लोग हैं, जो नहीं सुन रहे उनके लिए, आपके लिए नहीं है ये। कोई आमेन बोलेगा? अच्छे लोग आमेन। अभी सब आमेन। जो मैं आलसी था वो मुझे मारना है। जो भी नकारा था वो मुझे मारना है। और जो भी झूठ बोलता था वो मुझे मारना है। जो भी चाम चोरी करता था वो मुझे मारना है। जो
लगाता था आग, वो मुझे मारना है। या जो इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में निंदा करता था, मुझे परमेश्वर आके नहीं मारेगा। तुम कितना भी पानी लो, कितना भी इसको छिड़काओ, उसको छिड़काओ, कितना भी घर में पानी पड़ाओ, कुछ नहीं होने वाला। आमीन। तुम कितना भी पवित्र पानी पियो, वो पानी सारा निकल जाता है, इसमें कुछ नहीं होता है। तुम कितना भी मेरे बॉडी से रुमाल घिस घिस के लगाओ, मेरा ये कलर निकल जाएगा, लेकिन आप सुधरोगे नहीं। आपको खुद को सुधारना है। बोलो बाजू वाले को, आपको खुद को सुधारना है। बोलो, आपको खुद को सुधारना है। ये अपेक्षा मत रखो कि परमेश्वर आके तुम्हें उठाएगा, तुम्हें सुधारेगा। नहीं होता है ऐसा। मैंने बड़े बड़े शैतानों को यीशु के नाम में निकल जा ये बोलने पर भागते हुए देखा है, आमीन। लेकिन अच्छे भले इंसान को सुधरते हुए नहीं देखा है। आमीन। क्यों? क्योंकि ये ताकत परमेश्वर ने हमें दी है, आमीन। 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 ताकि हम सुधरे, हम सही हो जाए, हम लाइन पे आए। आमीन। घर में गए नहीं, यहां से निकले नहीं, उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे, अरे तेरे बारे में बोलना। तुला माहिती तिच्या घरामध्ये, तिच्या घरात काही आग लागू दे, तू तुझं बघ, तू नरकात चाललीये। आमीन। तिने मला जळवायला ही साडी घातली, अगं तुला जळवायला तिने साडी नाही घातली, तुझ्यासाठी शैतानाने तुला जळवायला आग पेटवलेली आहे। People of God, you know, I have to deal with my flesh. परमेश्वर के लोगों, मुझे मेरे शरीर के लालसाओं पर काम करना है, Because I belong to the bloodline. क्योंकि मैं उस वंश का हूं। आमीन। Amen. आमीन। माझा येशू कधी चहाडीखोर नव्हता. Give the Lord a mighty hand of praise. आमीन। माझ्या येशूनी नाही विचारलं त्या मेजाच्या टेबलावरती, पेत्र तुला ठाऊक आहे का की मला हा यहूदा धरून देणार आहे? आमीन। नाही, ह्याचं ह्याला, त्याचं त्याला। तुला माहिती किती पाप है त्या यहूदामध्ये? तेरे को मालूम कितना पाप है उस यहूदा में? हाँ, बहुत पापी है वो। पत्रस इधर आ, तेरे को मैं बताता हूँ सुमड़ी में क्या कोमड़ीगिरी कर रहा है ये। नहीं, आमीन। हम तुरंत एक भाई का, बहन का पाप देखा रे देखा, इसको फोन, उसको फोन, इसको लगा, और फार न्यायी, आम्ही फार प्रभूचे लोक। अरे नोहाचं पाप तू उघडकीस आणतोय, तुला लपवायची संधी मिळाली, आमीन। आमीन। मध्यस्थी करायची संधी मिळाली, आमीन। तू काय शोभा वाढतोय, तू शापित होतोय। गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज। साखली मूठ 1000 करोडची, माझा भाऊ, माझी बहीण, ते मी बघेल, माझी प्रार्थना बघेल, माझा प्रभू त्याला उचलून धरेल, हे पाहिजे वातावरण आतमध्ये। आमीन। तो का नोहा दारू प्यायला गेला काय माहिती, करत असे सेलिब्रेट, वाचलो म्हणून, प्रेज द लॉर्ड, न्यू ईयर असेल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपना तंबू में पी के सो गया, खुद के तंबू में सोया। अरे मैं मेरे रूम में क्या करूंगा, तेरे को क्या करने का है? वो रूम में आके झकने का। देव वाचो बाबा आपल्याला अशा पवित्र लोकांपासून। You know, listen everybody, it's imperative that you and I understand that working on our flesh is more important than rebuking the devil. देखो, आपको और मुझे, हम सबको ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर के लालसाओं पर काम करना ये शैतान को रोकने से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। Yeah, हाँ, because Satan smells the flesh. क्योंकि शैतान जो है वो शरीर की खुशबू को
पहचानता है, सूंघ लेता है। सूंघते हुए आता है, सूंघते हुए तो शोधित फिरतो, वास घेत फिरतो, कोणाला गिळावे शोधित फिरतो तो, कोणाला गिळावे, कोण त्याच्यासारखा आहे, कोण देहामध्ये वस्ती करणारा आहे, कोणाला प्रार्थना करायला आवडत नाही, कंटाळ येतो, कोणाला बायबल उघडायला आवडत नाही, कोणाला गुडघ्यावर जायला आवडत नाही, कोणाला देवाला पहिलं स्थान द्यायला आवडत नाही, अशा लोकांच्या इकडं तिकडं तो फिरत बसतो. कोणाला तासन तास मोबाईल घेऊन बसायला आवडतं, अशाच लोकांच्या अवतीभोवती तो फिरत बसतो सैतान. तुम्हाला फक्त तो दिसत नाही आणि जा आवाज येत नाही, पण देवा एकदाचे डोळे उघड रे, उघड. नाही बिचाने यांनी उल्लेख केले, चॅलेंज आहे प्रभू. असे घाबरून गुडघ्यावर प्रार्थनेला बसतील, असे थरथर 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 डोळे मारतील, प्रभू वाचव. फक्त एकदा डोळे उघड आणि यांना दिसू दे सैतान यांच्या बाजूला कसे वाट बघून आहेत. मग यांना कळणार नाही वेट अँड जॉयला जाऊ का वेट आणि जॉय इथंच हो. इथंच खाटेवरच वेट आणि तिथंच जॉयफुल होतील. फक्त यांचे डोळे एकदा उघड प्रभू, एकदा उघड. त्यांना कळणार नाही रील बघायची का मोबाईलला रील मध्ये बघून फेकून द्यायचं. त्यांना खरंच कळणार नाही. एकदा उघड प्रभू, आज रात्री होऊ दे. न्यू इयर यांचा नवीन वर्ष असा सुरू होईल, असा हिरे बसो बथे भला बथा केला. मुलींना कळणार नाही लिपस्टिक लावायची का कुठे फेकून द्यायची, काहीच कळणार नाही प्रभू. केस विंचरायचे का नाही करायचे. अरे दादा, उद्या कुठे चालले असेल लंचला डिनरला, म्हणजे काय घ्यायला गोडात उपास. जस्ट ओपन देयर आईज, बस उनकी आंखें खोल दे एक बार. दिसू दे सैतान कसे बाजूला बसलेलेत. आणि मग ते कधी म्हणणार नाही मी एकटा आहे. नाही, पण ते असं करणार नाही, कारण देवाला भय नकोय. भयाने तुम्ही त्याच्याकडे आलेले आवडत नाही, त्याला प्रेमाने त्याच्याकडे आलेले आवडतात. प्रेमाने. कमान 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 कमान. Hallelujah. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, let's read further now. आइए हम आगे बढ़ते Every हैं. branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Hallelujah. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले. You know, people of God, hear this everybody. आपको पता है परमेश्वर के लोगों, सभी इनसे सुनो. You know, whenever you show any improvement in God, any progress, any, देखो जब कभी भी आप परमेश्वर में कोई भी सुधारना दिखाते हो या फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप दिखाते हो, कुछ भी, God prunes you. परमेश्वर आपको छांटता है. मलाच बोलता, पास्टरने मलाच ओरडतात. मी एवढं चर्चला येतो, कीबोर्ड वाजवतो, आणि तो ह्याचं नाव काय विशाल, हा चर्चला कधीच येत नाही, पास्टरला काय बोलतच नाही, आणि मी कीबोर्ड वाजवतो, एवढं सगळं सेवा करतो, साफसफाई करतो, सगळं करतो, आणि सारखं मलाच धरून सारखं ओरडतं, सारखं ओरडतं, सारखं ओरडतं. मलाच का, मीच का, मलाच का ओरडायचं. माझ्या चर्चला येणं गुन्हा आहे, देवाची सेवा करणं गुन्हा आहे. हा गुन्हा आहे का हा? म्हणजे मी एवढं चांगलं राहतो तर मलाच ओरडायचं, आणि हा येत नाही, कधी आला तर येतो, मागे बसून पळून जातो, ह्याला काही नाही, हा ह्याला काही नाही, आणि मलाच का, तुलाच का, कारण तू फळ आणतो म्हणून. आमेन आमेन. देवाचा स्वभाव आहे, स्वभाव.
ज्यांनी कोणी फळ आणलं त्याला कातर घेऊन छाटलं. आमेन. जो फळ नाही आणत त्याला काय केलं जातं? कापलं जातं. कापून फेकलं जातं. बोला बाजूला, कापून फेकलं जातं. बोला कापून फेकलं पुन्हा जातं. बोला, कापून फेकलं जातं. कापून फेकलं जातं. People of God, परमेश्वर if के लोगों, God corrects you, that means God is pruning you because you are fruitful. Keep it in your bloodstream. अगर परमेश्वर आपको सुधार रहा है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको छाट रहा है क्योंकि आप फलदायी हो. ये इस बात को आपके जहन और खून में डाल दो. या गोष्टीला तुमच्या रक्तामध्ये घुसवा. याची सवय लावा. इसकी आदत डाल दो. बोला बाजूला, याची सवय लावा. याची सवय लावा. पुन्हा बोलायची सवय लावा. याची सवय लावा. तुम्हाला सवय झाली पाहिजे देवाच्या छाटणीची. आमेन. किती लोक ख्रिस्तामध्ये आहे? आमेन. आहे का? विचारा बाजूला, आहे का? आहे का? खरं आहे का? खरं आहे का? मग देवाच्या छाटणीची सवय लाव. सांगा एकमेकाला. आमेन. मग देवाची छाटणीची सवय लाव. मग देवाच्या छाटणीची सवय लाव. बोला देवाची छाटणीची सवय लाव. आमेन. आमेन. तुम्हाला सवय असली पाहिजे देवाच्या छाटणीची. देव छाटत असा नाही. खुदा ऐसा नहीं छाटता है. असं घेत अरे ना, चांगलं फळ आणतो. हा, असंच फळ आण. हा बाळा, आलं फळ. हा, ये मांडीवर बसतो तू माझ्या. ए मांडीवर दे खुर्ची आण बाळाला साठी. हा, ते आतमध्ये चॉकलेट आण, त्यासाठी चॉकलेट आण. माझ्या बाळाने फळ आणले. हा, फळ देण्यावाला बाळ आहे. 3 फळं दिले. ये फळदायी झाड आहे एकदम. ये जवळ या. अरे किती गोल आहे माझं बाबूलो. माझं बाबू आहे, माझं बाबू. चॉकलेट आण. चॉकलेट खा. काय कॉल मी छाटत आहे याला. है छाटणे चटने चटने चटनी. ये क्या है? छाटने. इसको क्या कहते हैं? छाटना. छाटने कहते. छाटने. छाटने. देव चाटते. ऐसा नहीं चटते देव. कैसे चटते? उधर जाता हूँ फिर. कैसे चटते थे? कैसे चटते? कैसे चटते होते ती? मेरी आवाज सुनो. देवाचा पट्टा येतो. मेरी आवाज नहीं सुनेंगे तो पट्टे मिलेंगे. People of God, परमेश्वर के लोगों, this is not pruning. इसे छाटना नहीं कहते. Somebody has spoiled your head. चॉकलेट किधर है? Somebody has spoiled your head. किसी ने तो आपका दिमाग खराब किया है. People of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों सभी ने इसे सुनो. This is not how God works. खुदा ऐसा काम नहीं करता. The moment you show improvement to God, जैसे आप परमेश्वर की तरफ सुधारना दिखाते हो, God will start pruning you. खुदा आपको छाटने लगेगा. आमेन. Amen. आमेन. Because, ask me why. और क्यों? मुझे पूछो क्यों. जोर से एक आवाज ठीक से नहीं आया. Once again, ताकि वो ब्लड लाइन ठीक से बहे. It's highly important that the bloodline has to flow in every part of your life. और ये बहुत ही अनिवार्य और जरूरी है कि उस वंश का लहू जो है आपकी जिंदगी के हर एक विभाग में ठीक से बहना चाहिए. People of God, परमेश्वर के लोगों, and this is what it says, that when you are in the Lord, when you are engrafted in God, in the Lord Jesus Christ. और यही तो कहता है कि जब आप यीशु मसीह में कलम किए गए हो, People of God, परमेश्वर के लोगों, you and I have to understand that we have the blood of the Lord Jesus flowing through my life. और आपको यह समझना जरूरी है कि यीशु मसीह का लहू जो है वो मेरे जिंदगी से बह रहा है. Now hear this everybody. अब ये सभी जन सुनो. Don't miss this point इस now. मुद्दे को मत गवाओ. It says over here, यहाँ पर कहता है, abide in me and I in you. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा. As the branch cannot bear fruit of itself, जैसे डाली दाखलता के बिना न रह सके, except it abide in the vine, तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे
no more can ye except ye abide in me. वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। Further it says, पर आगे कहता है, I am the vine and ye are the branches. मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Yeah. हाँ, Many people feel, that I have achieved this, I have achieved that. It is not you, it is the Lord through you. और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ये हासिल किया है, मैंने वो हासिल किया है। वो आप नहीं हो, लेकिन वो खुदा है जो आपके द्वारा आपको मदद किया वो हासिल करने के लिए। Amen. Amen. Jesus says, without me, ye can do nothing. यीशु कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Amen. Amen. How is it possible when I am engrafted in a vine, and if I dislodge myself from the vine, how will I bear forth fruit? चलो, ये कैसा हो सकता है कि अगर मुझे एक दाखलता में कलम किया गया है और मैं खुद को उस दाखलता से अलग करता हूं, तो फिर मैं कैसे जी पाऊंगा? People of God, परमेश्वर के लोगों, that's what exactly is happening today. और यही तो आज की तारीख में हो रहा है। We are engrafted in the vine called Jesus. हम यीशु नामक दाखलता में कलम किए गए हैं। Our focus is Egypt, the world around us. लेकिन हमारा ध्यान जो है वो मिस्र है, इस दुनिया जो हमारे आसपास है उस पर है। We are completely distracted. हमारा ध्यान पूरी तरह से हटा हुआ है। We don't pray connected. We don't read the word of God connected. हम जुड़े हुए रहकर दुआ नहीं करते और परमेश्वर के वचन को जुड़े हुए रहते हुए नहीं पढ़ते। And then और फिर we say I'm living in Christ. और फिर हम कहते हैं कि मैं मसीह में जी रहा हूँ। How will I ever bring forth fruit if I am drying away? अगर मैं सूखा होते जा रहा हूँ, सूखते जा रहा हूँ, तो मैं फल कैसे ला सकता हूँ? माझी प्रार्थनेची वेळ पहा. मेरी दुआ के समय के पास देखो। माझं बायबल रीडिंग पहा. मैं कितना वचन पढ़ता हूँ उसके पास देखो। मला कोणी वचन वाचायला लावलं तरच मी कधीतरी 1, 2, 3 वचन वाचतो, नाहीतर मी काही वचन वाचत नाही. अगर माझं आयुष्य बघा और मेरी जिंदगी के पास देखो। अगर कोई मुझे कहता है वचन पढ़ने के लिए, तो फिर मैं 1 या 2 वचन पढ़ लेता हूँ। माझे जिंदगीकडे पहा. मेरे जिंदगी जीवन के पास देखो। How me I am drying up. कि मैं कैसे सूखते जा रहा हूँ। मी सुकत चाललोय देवापासून, आणि मग मी फळदायी कसं होणार? मैं तो खुदा की ओर से सूखते जा रहा हूँ, तो फिर मैं फलदायी कैसे बनूंगा? प्रार्थनाला बसलो तरी अभिषेक येत नाही. दुआ में बैठता हूं तो अभिषेक आता नहीं। वचन वाचतो ते समजत नाही. वचन पढ़ता हूं तो समझ में नहीं आता। वचन उघडायला कंटाळा येतो, डोकं दुखतं. और वचन को खोलने के लिए तो मुझे बहुत आलसीपन होता है और मेरा दिमाग दुखता है। अंगामध्ये आळोखे पुळोखे येतात प्रार्थनेचं नाव घेतलं की. और प्रार्थना का नाम लेते ही, दुआ का नाम लेते ही मेरे शरीर में कुछ ना कुछ होते रहता है। Then how I can say I am in Christ? तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं मसीह में हूँ? बोला वाजायला, आपण सुकत चाललोय का रे? आपण सुखत चाललोय का रे? विचारा. आपण सुखत चाललोय का रे? आपण सुकत चाललोय का रे? आपण सुखत चाललोय का रे? जे प्रभू म्हणतो की माझ्या वाचून तुम्ही काही फळ आणू शकत नाही. और खुदा कहता है कि मुझे छोड़ तुम फल नहीं ला सकते। जर का तुम्ही माझ्यापासून वेगळे झाला, तुम्ही काही प्रोडक्टिव्हिटी, तुमच्यामध्ये काहीही गुणवत्ता, काही चांगलं राहणार नाही. नथिंग. अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तो आप में कुछ भी उपज और आप में कुछ भी अच्छा कुछ भी नहीं रहेगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, is today my life away from the bloodline? क्या आज मेरी जिंदगी उस वंश के लहू से दूर है? Am I living a life where the bloodline is missing? क्या मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जहां पर लहू का वंश नहीं है, खाली है? Am I living a life where the blood of the Lord is not flowing in my life? क्या मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जहां पर खुदा का लहू मेरे जिंदगी से नहीं बह रहा है? How will I know? मुझे कैसे पता चलेगा? The Bible says that. बाइबल ये बताता है, Romans 8:9. रोमे की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 9, But ye are not in the flesh, but in the spirit. If so be
that the Spirit of God dwell in you. परंतु तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो. Amen? आमेन. Further. आगे. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं. Amen. Amen. Now, hear this, everybody. अब ये सभी जन सुनो. It means, इसका अर्थ यह है, if I don't have the baptism of the Holy Spirit, अगर मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है तो I don't belong to Jesus. फिर मैं यीशु का हूँ ही नहीं. Now, listen. अब सुनो. There are two parts to this verse. और इस वचन के दो भाग हैं. The first one, पहला, the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. I need to have the Holy Spirit indwelling me. और पवित्र आत्मा मुझ में बसना जरूरी है. When Jesus was baptized, जब यीशु को बपतिस्मा दिया गया था, when the Holy Spirit came upon Jesus, और पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतर आया, Jesus allowed it to happen. और यीशु ने परवाना दिया ऐसा होने के लिए. आमेन. Amen. आमेन. Jesus did not say to the Holy Spirit like this. यीशु ने पवित्र आत्मा को इस तरीके से नहीं कहा, Hey, why are you coming? ए तू क्यों आ रहा है? I am number 2, you are number 3. I don't need you. Go. मैं तो क्रमांक 2 पर हूं, तू तो क्रमांक 3 पर है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू जा. Did he say that? क्या यीशु ने ऐसा कहा? No. नहीं. After the baptism of the Holy Spirit, after the baptism of the Lord Jesus Christ, और यीशु मसीह के पानी में बपतिस्मा होने के बाद there was a voice from heaven. और स्वर्ग से एक वाणी आई He is my beloved son in whom I am well pleased. कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं बहुत खुश हूं. Listen, everybody. आप सभी जन सुनो. Jesus is a model for you and for me to live. और यीशु जो है आपके लिए और मेरे लिए एक मॉडल है, हमें किस प्रकार से जिंदगी जीनी है. देवानी स्वर्गामधून एक मॉडेल पाठवला आमेन. आमेन. या पृथ्वीवरती तुम्हाला आणि मला हे दाखवायला की देवामध्ये कसं जगायचं. और खुदा ने स्वर्ग से एक मॉडल इस धरती पर भेजा आपको और मुझे ये दिखाने के लिए कि खुदा में कैसे जीना है. Amen. आमेन. 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 So Jesus is the measure. तो यीशु ही वो माप है. आपल्याकडे ते मेजरिंग टेप आहे का टूल बॉक्स मध्ये? तुम्ही एक पट्टी घ्या. पट्टी. You take a ruler. आप एक पट्टी ले लो. 10 centimeter, you take 10 centimeter. आप 10 सेंटीमीटर ले लो. You go anywhere. आप कहीं पर भी चले जाओ. 10 doesn't become 11. 10 जो है वो 11 नहीं होता. Amen. आमेन. So likewise, और वैसे ही Jesus is the ruler, is the measure of heaven, और वैसे ही यीशु ही स्वर्ग का वो नाप है by which you and I will be measured. जिससे आपको और मुझे नापा जाएगा. आएगा? नहीं. Okay. Listen, everybody. आप सभी जन सुनो. So I have to look at Jesus and follow. तो मुझे यीशु के पास देखना है और उसके पीछे चलना है. वैसे ही वैसे I have to look at Jesus and follow him. मुझे यीशु के पास देखना है और उसके पीछे चलना है. People of God, परमेश्वर के लोगों, without Jesus in my life, I'm over. अगर यीशु मेरे जिंदगी में नहीं है तो मैं खत्म में जमा हूं. How will I have Jesus in my life? और मेरे जिंदगी में यीशु कैसे होगा? By prayer, every day, connected prayer, not just sitting and sleeping. Connected prayer, connected. और दुआ करके हर दिन ऐसे दुआ जो जुड़ा हुआ है, बस बैठ के दुआ करना और सोना ये नहीं, लेकिन एक ऐसी दुआ जो जुड़ी हुई है, जो जुड़ी हुई है. Every day reading of the word, connected. हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, वो भी जुड़ा हुआ रहकर. Now hear this, everybody. आप सभी जन सुनो. So when I have the baptism, when I get the Holy Ghost inside of me, तो जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, that doesn't mean I have reached heaven. इसका अर्थ ये नहीं कि मैं स्वर्ग पहुंच गया. No, 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 no. नहीं 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 नहीं. Your journey towards heaven has just begun. स्वर्ग की तरफ का आपका सफर बस अब शुरू हुआ है. Let me ask you one question. You have been to UK, right? और मैं सुनू से एक सवाल पूछता हूँ कि तू यूके गया था ना? हाँ. Right? Okay. So when you, जब आपको वो वीजा मिला, पासपोर्ट मिला, फिर उसके बाद वीजा मिला, तो इसका मतलब आप यूके पहुंच गए? नहीं. नहीं. आपको क्या करना पड़ा यूके जाने के लिए? और टिकट लेने पड़े, एयरपोर्ट जाना पड़ा, हाँ. और वो जो एयरप्लेन है उसमें बैठना पड़ा,
उसके पहले इमिग्रेशन चेक और वो सब कुछ हुआ, फिर एयरप्लेन में सिक्योरिटी चेक, फिर एयरप्लेन में बैठना पड़ा, फिर वो एयरप्लेन ने उड़ान ली और फिर यूके में वो उतरा। फिर उसके तुम बाद यूके पहुंच गए, उसके बाद मैं राइट? वहां पे पहुंचा। समझो, अभी सवाल ध्यान से सुनो। समझो, तुम्हारे पास सब कुछ है, ओके? पासपोर्ट है, वीजा है, टिकट है, सामान है, सब कुछ है, और तुम सिक्योरिटी चेक के पास पहुंच गए, लेकिन तुम्हारे बैग में बॉम्ब है, तो तुम्हें यूके जाने दिया जाएगा क्या? नहीं, मुझे यरोडा जेल भेज देंगे। करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ पासपोर्ट और वीजा से कुछ नहीं होता है, तुमको सही नियम का पालन करना जरूरी है। अमेन अमेन आमेन। अमेन। मुझे याद है जब मैं दिल्ली गया था, तो मेरे शूज थे, कैटरपिलर के शूज थे, और उनके नोक पे स्टील टो था, स्टील का। तो मुझे हर चेक पॉइंट पे जूते उतारने पड़ते थे और उनको दिखाना पड़ता था कि ये स्टील टो है, अंदर कुछ नहीं है। बाद में मैं वैताग गया, खांद्यात घेऊन फिरतो आता। People of God, परमेश्वर के लोगों, you cannot just live anyhow and I've got the Holy Ghost. और मुझे पवित्र आत्मा मिला है और आप ये ऐसा आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी जी सकते हो। अभिषेकामध्ये आणि बरोबर प्रार्थना करून पडायचं, लोळायचं आणि कसं राहायचं, नाही चालत असं। ऐसा नहीं चलता है, बोलो बाजू का, ऐसा नहीं चलता है, बोलो। ऐसा नहीं चलता है। फिर से एक बार बोलो, ऐसा नहीं चलता वो है। ऐसा हो गया कि तुम जा रहे हो अमेरिका ब्रीफ केस में बॉम्ब लेके, बोले तुमको जो बाइडेन ने बुलाया रहेगा, आ जाओ बच्चा, कुछ फायदा नहीं है, तुमको इंडिया वाले ही पकड़ेंगे पहला। आमीन। हाँ, वो जो बाइडेन जाने दे, तेरे को इधर बाजू में आ, तू आ जा, और हम बाइडेन को बाद में देखते, तेरे को पहले देखते, आ जा। आमीन। पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, अंडरस्टैंड, ये समझ लो, you need to have the spirit of Christ in you. आपके अंदर मसीह का आत्मा होना जरूरी है। बोलो मेरे पीछे, मसीह का आत्मा, बोलो मसीह का आत्मा, जोर से बोलो। मसीह का आत्मा। It means what? इसका अर्थ क्या है? The character of Christ. कि मसीह का फितरत, मसीह की फितरत, मसीह की फितरत, बोलो मसीह की मसीह की फितरत, बोलो फितरत, फितरत, जोर से बोलो, फितरत, जोर से बोलो, फितरत, जोर से बोलो। फितरत। एक सिंपल एग्जांपल, एक आसान सा उदाहरण देता हूँ। Pooja was giving pedas there the other day over there. उस दिन पूजा वहां पर Cake, she was giving cake. उस दिन पूजा वहां पर केक दे रही थी। She gave everybody two pieces. उसने सभी को केक के 2 टुकड़े दिए, But to me, she gave only half. लेकिन मुझे केवल आधा ही दिया। Now, अब I am planning, मैं योजना बना रहा हूँ how will I take this sud? कि Badla. ये बदला मैं How कैसे will I लूं? take this revenge? मैं ये बदला कैसे लूं? I am also thinking of distributing cake in the church now. अब मैं भी सोच रहा हूँ कि कलीसिया में केक बांटूं, And when Pooja will come near me, और जब पूजा मेरे करीब आएगी, I will run away with the packet everywhere. वो पैकेट लेकर मैं सभी जगह भाग जाऊंगा And I will give it to everybody. और मैं सभी को दूंगा, And I will make sure और मैं ये ध्यान रखूंगा that Pooja only gets one small morsel from the cake. कि पूजा को केक का बस एक छोटा सा टुकड़ा मिले। Now I am pastor. अब मैं तो पास्टर हूँ, I am filled with the Holy Spirit. मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ I हूँ, talk in tongues more than anybody else. और यहाँ पर जो जितने लोग हैं उनसे कई ज्यादा तो अन्य भाषा में मैं बोलता हूँ। Sometimes when I say hello on the phone, I talk in tongues by mistake. और कभी कभी जब मैं फोन में हेलो बोलता हूँ तो गलती से मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, but I need to have one more ingredient in me, लेकिन मुझ में एक और चीज होना जरूरी है, and that is the Spirit of Christ. और वो है मसीह का आत्मा। म्हणजे ख्रिस्ताचे गुणधर्म माझ्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. इसका मतलब यह है कि मसीह के फितरत जो है, गुण जो है, मुझ में होना जरूरी है। Amen. Amen. Now I know if Deepak is having negative in my heart or Sunu is having negative in my heart, if I know that, अब अगर मैं ये जानता हूं कि दीपक के मन में या फिर सुनु के मन में मेरे विरोध में नकारापन है,
I have got two choices. मेरे पास दो चुनाव है. बघा मला माहितीये या दोघांच्या मनात माझ्याबद्दल वाईट आहे, माहितीये मला. आता मला चान्स आलेला आहे हे दाखवायचं की मी कोणासारखा आहे. आमेन. अब मुझे मौका मिला है ये दिखाने के लिए कि मैं किसके जैसा हूं. Talk to me somebody. तो कोई तो मुझसे बात करो. Amen. आमेन. If I am of the devil, अगर मैं शैतान का हूं I will plan all the negative schemes against these two people. और मैं सारे नकारे तरकीबें अपनाऊंगा इन दोनों के विरोध में. Yeah. हाँ. But if I am of Christ, लेकिन अगर मैं मसीह का हूं, if I have put my, if I marinated myself in the Holy Spirit, come on, और लेकिन अगर मैंने खुद को पवित्र आत्मा में डुबोए और रखा है, I will still be good with both of them. मैं फिर भी इन दोनों के साथ अच्छा ही रहूंगा. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. Why? क्यों? Because that is the Spirit of Christ. क्योंकि ये मसीह का आत्मा है. You know what is the Spirit of Christ? आपको पता है मसीह का आत्मा क्या है? यहोदा इस्करियोत मला धरून देणार आहे, तरी यहोदा माझ्या बाजूला बस आणि माझ्या ताटातून खा. आमेन. याला म्हणतात ख्रिस्ताचा आत्मा. खमा. आमेन. आमेन. मेरे को मालूम है ये यहूदा मुझे पकड़ के देने वाला है, फिर भी मेरे बाजू में आके बैठ हमेशा की तरह और खा. वो भी मेरे ही थाली में से. आमेन. People of God, that's tough. और परमेश्वर के लोगों ये मुश्किल है. बोलो बाजारे को. ये मुश्किल है. फिर से एक बार. ये मुश्किल है. फिर से एक बार. ये मुश्किल है. बोलो बाजारे को, अगर तू ऐसा नहीं करता इसका मतलब तू डरपोक है. बोलो. अगर तू ऐसा नहीं करता इसका मतलब तू डरपोक है. फिर से एक बार बोलो. अगर तू ऐसा नहीं करता इसका मतलब तू डरपोक है. बहुत मुश्किल होता है सामर्थ होने के बावजूद भी सूली पे टंगा रहना. कोई हमें चिल्लाएगा क्या? बहुत मुश्किल होता है ताकत होने के बावजूद भी सारे गुनाहगारों को माफ करना. कोई हमें चिल्लाएगा क्या? People of God, परमेश्वर के लोगों, am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ जो है मैं बात कर रहा हूँ क्या? कोई हमें चिल्लाएगा? Amen. Amen. That's called staying in the bloodline. इसे कहते हैं कि लहू के वंश में ही जीना. कोई हमें चिल्लाएगा? आमेन. रक्ताच्या त्या वंशाळीमध्ये राहणं ज्या वंशाळीमध्ये देवाने तुम्हाला लावलेला आहे. People of God, तो परमेश्वर के लोगों, I have to die to this flesh of mine. तो मुझे मेरे इस शरीर को मरना पड़ेगा. Amen. Amen. कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन. या रोज मला मारायचंय त्या देहाला. रोज मला हा नाही भेटला, माझ्या हा नाही बोलत, ती नाही बोलत, मला कोण प्रेस लॉर्ड नाही करत, मला माझा हे कार्यक्रम असला तर मला कोण मदत करत नाही का. अरे जाऊ दे ना, तुला कळतं ना, मग तू कर ना. आमेन. आमेन. तू कर. आमेन. मला सगळेच वाईट आहे या चष्मे, सगळेच वाईट. हो सगळेच वाईट आहे, तू एकटा काळा आहे. सगळेच वाईट, सगळेच वाईट. मग तू कोण? तू कोण? काळे? मधुसूदन काळे? कौन है तू? मेरे बाप काळे, मेरी माँ काली. अरे कौन है तू? अगर सब लोग वाइट है तो तू भी तो वाइट से ही तो आया है. आमेन. मी बाहेर एक बोर्ड लावणार आहे, आत काम चालू आहे. आमेन. आणि अजून एक बोर्ड लावणार आहे. जर का तुम्हाला वाटत असेल की सगळे चांगले लोक बसले इथं, हा तुमचा फार मोठा गैरसमज आहे. आमच्यासारखे डॅमरट, डॅम्बिस, भामटे, चोरटे, खोटारडे, लबाड, जेवढे सगळं काय येईल ते सगळं लिहिल बाहेर, असे कोणीच जगात नसतील. पण त्या आमच्या येशूमुळे आम्ही इथं सुधरून बसलेले. खावा पण फक्त सुधरून बसायचं नाही, सुधरून घरी पण जायचंय. आमेन. आमेन. आणि सुधरलेले इथे यायचंय. आमेन. आ आमेन. मोठ्याने. आमेन. Yeah. हाँ. People of God. परमेश्वर के लोगों, Am I talking to somebody here? Come on, can क्या you मैं hear किसी के an साथ amen? इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? आमेन. या कधी कधी मला पण असं वाटतं, असं तसं. अरे कमान यार,
मोहब्बत करना सीखो. Amen. लाइन मारना नहीं बोल रहा हूं मैं. लगेच पास्टरने बोले मोहब्बत. ऐक, अगापे प्रेम करायला शिका एकमेकावर. Amen. आमेन. Amen. ज्या जी व्यक्ती आवडत नाही तिलाच घेऊन बसायचं, हे की नाही. और अभिषेकात असं दणकणी पडत तिच्यावरती खोडकी मोठली पाहिजे. असा अभिषेक आला रे आला, बघायचं कुठे झोपलीये. पाटकनी पॉवर पंच. ओके एवरीबॉडी. ठीक है सभी जन. Ephesians chapter 2 everybody इफिसियों की पत्री इसका दूसरा अध्याय and verse 6. और वचन 6. And hath raised up us together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Come on. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया है और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है. Amen. Amen. देवाने आपल्याला येशू बरोबर स्वर्गीय स्थानांमध्ये बसवलेलं आहे. और खुदा ने हमें यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है. Amen. Amen. तुम्हाला कळलं मी काय म्हटलोय? तुम्ही आणि मी आपण स्वर्गीय स्थानांमध्ये बसलेलो आहे. क्या आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? बस आप ले लो और मैं, आहे. हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं. बैठे हैं. अब्दुल कलाम में तो सिर्फ बॉडी बैठा है, लेकिन पूरा अधिकार से हम स्वर्ग में बैठे हैं. It doesn't say कि बैठने वाले हैं, लिखा है कि बैठे हैं. और इसीलिए जब आप बस स्टॉप के लिए देरी में आते हैं और आपको मालूम है बस जाने वाली है, तो आप जब कहते हो कि परमेश्वरा बस लेट येऊ दे, तेव्हा का होतं कार्य? कारण तुम्ही त्या अधिकारामध्ये बसलेले आहात. Am I talking to somebody here? बात कर रहा हूँ क्या? Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, and think about it now. Think about it. अब इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो. That I am sitting with God, with Jesus, with Christ in heavenly places and murmuring about somebody else. कि मैं खुदा के साथ बैठा हूँ, यीशु के साथ बैठा हूँ, मसीह के साथ बैठा हूँ स्वर्गीय स्थानों में और किसी और के बारे में कुरकुर कर रहा हूँ. आहा! ऊंची लोग, ऊंची जगह और नीचले विचार. किधर बैठा है यार? बोलो बाजार को, किधर बैठा है यार? किधर बैठा है यार? और क्या सोचता है और यार? क्या सोचता है यार? बोलो बाजार का, बोलो. किधर बैठा है यार और क्या सोचता है यार? बोलो. किधर बैठा है यार और क्या सोचता है यार? Now I'm coming to the end of my message. और अब मैं मेरे संदेश के आखिरी भाग में आ But रहा before हूँ. that I'll give one more. Do you want one more verse? लेकिन उसके पहले मैं एक और कुछ देना चाहता हूँ. एक और वचन आपको चाहिए क्या? असंच विचारत आहे, देणारच आहे मी. Now Romans chapter 8 everybody. देखो नाम के लिए पूछा वो तो मैं देने ही लाऊं. Romans chapter 8 की पत्री everybody. इसका 8वां अध्याय And verse 15 to verse 17. और वचन 15 से लेकर वचन 17 For ye तक. have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु गोद लेने की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं. Amen. पवित्र आत्मा मिळाल्यानंतर एक वेगळाच आपलेपणा आपल्याला देवाबरोबर जाणवतो. Come on. हमें पवित्र आत्मा मिलने के बाद परमेश्वर के साथ हमें एक अलग ही रिश्ता हमारा बन जाता है. एक नया, एक वेगळाच आपलेपणा, अब्बा बाप्पा म्हणून हाक मारण्याचा अधिकार मिळतो ज्यावेळेस आपल्याला पवित्र आत्मा मिळतो. Come एक on. अलग ही अपनापन, एक अलग ही अपनापन हमारा बन जाता है जिससे हम हे अब्बा, हे बापा करके पिता, हम हे पिता करके हम पुकारते हैं. आमेन. आमेन. यीशु मसीह वो पहला इंसान था जब उसको पूछा गया कि हमको सिखा कि दुआ कैसी करनी है, तो वो पहला इंसान था जिसने कहा हे हमारे स्वर्गीय पिता. क्योंकि वो पुत्र था इसलिए उसने पिता कहना लाजमी समझा, इसलिए उसने पिता कहना ये इंसानों को सिखाया, क्योंकि उसके द्वारा हम सब उसके बच्चे बन जाते हैं. Come on. एक लौता ऐसा इंसान जिसने खुदा को पिता करके बोला है, पिता करके बोला है, पिता. Come on. आमेन, आमेन. हे आमच्या स्वर्गीय
स्वर्गीय पिता हे शिकवणारा हे पहिला व्यक्ती आणि शेवटचा म्हणजे येशू ख्रिस्त. और है हमारे स्वर्गीय पिता ये सिखाने वाला पहला और आखिरी इंसान यीशु. आमेन. आमेन. कोणताच देवाचा सेवक त्यांनी कधी हिम्मत केली नाही देवाला अब्बा बाप्पा म्हणून हाक मारायची. कोणत्याच व्यक्तीनी नव्हे. आमेन. आमेन. जगामध्ये एवढे लोक होऊन गेले पण कोणीच कधी हिम्मत केली नाही त्याला अब्बा बाप्पा म्हणून हाक मारायची. पहिला व्यक्ती येशू ख्रिस्त. आमेन. 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 कारण डॅडीला डॅडी म्हणून हाक कोण मारेल? पुत्रच ना. आमेन. आमेन. Come on. Now, verse 16, everybody. अब वचन 16 सभी The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है. Amen. Amen. पवित्र आत्मा मिळाला ना अगर the moment you get the Holy Spirit, जैसे आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है you have to build up a relationship with God, not with one another. आपको खुदा के साथ एक रिश्ता बांधना, एक दूसरे के साथ नहीं. Amen. आमेन. Spend time with God through the Holy Spirit. और परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा वक्त बिताओ. The Holy Spirit is given to you to help you. और पवित्र आत्मा आपको दिया गया है आपकी मदद करने के लिए. For what? किस चीज के लिए? To make more friends on Instagram. ताकि आप इंस्टाग्राम में और ज्यादा दोस्त बनाए. To go everywhere roaming around. कि ताकि आप सभी जगह पर घूमते हुए निकल जाए. Yeah. हाँ. To enjoy your life in Egypt. और ताकि आप आपके जिंदगी का मजा मिस्र में बनाओ. No. नहीं. You are not given the Holy Ghost to enjoy in Egypt. देखो आपको पवित्र आत्मा मिस्र में मजे करने के लिए नहीं दिए गए हैं. Listen everybody. अब सभी जन सुनो. Do you know क्या आपको पता है? the name of the Holy Spirit is the purpose of a woman's creation. The purpose of a woman's creation. और पवित्र आत्मा का जो नाम है वो औरत को बनाने का मकसद है. औरत को बनाने का जो मकसद है ना वो पवित्र आत्मा का नाम है. It means his name is the Parakletos. इसका अर्थ है उसका नाम है पाराक्लेतोस. The one given alongside to help you in all things. एक जो आपको दिया गया है जो सारी चीजों में आपकी मदद करेगा. And a woman's purpose of creation of God was as a helpmeet. और परमेश्वर का मकसद औरत को बनाना है यही था कि वो एक मददगार बने. आमेन. विचार करा स्त्रियांनो तुमच्याकडे देव कोणत्या अपेक्षेने पाहतोय आणि आम्हाला बघा कसा पाहतोय. तुम्ही लोक म्हणून देव म्हणाला हवेला अगं तू हे काय केलेस? आमेन. तुला बनवलं कशासाठी? तू काय करून बसली? म्हणून ज्या दिवशी मला प्रकटीकरण मिळालं त्याच मला कळालं देव तिला काय म्हणाला ऍक्च्युली. अगं तू हे काय केलेस? अरे तुला कोणत्या अपेक्षा पवित्र आत्म्याच्या काय डिग्री आहे तुम्हा बायांना देवाकडून? अरे मदतगार पाराक्लेटॉस पाराक्लेत पवित्र आत्म्याचं नाव आहे. तुमच्याकडून देव काय अपेक्षा करतोय आणि मी कोणत्या घाणीत डोकं घुसून बसलाय तुम्ही स्त्रियांनो. अरे 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 विचार करा. देव ज्या स्त्रिया त्याप्रमाणे फळ आणत नाही त्यांच्यासाठी कोणता नरक तयार करत असेल काय माहिती. कारण देवाच्या अपेक्षा भंग होतेत. आमेन. देवाने बनवलं कशासाठी? मदतगार. हा तो भाग वेगळा की सैतानाने तिचाच उपयोग करून मदत केली तिचीच मदत वापरून आदामाला बाहेर काढलं.
म्हणजे मददगार ती होती, हिंदी में बोलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो वो मददगार थी, लेकिन आदम को आगे लेके जाने की नहीं, पिच्छू खींचने में। हाँ, वो थी मददगार, मीन्स उसका काम उसने सही किया, काम सही किया उसने। लेकिन उल्टे दिशा में। हाँ, वो लेकिन रिवर्स में था, और गियर गाड़ी रिवर्स में डाला था उसने, उसको इतना मालूम नहीं था बस कि गाड़ी का गियर रिवर्स में पड़ गया है बस, लेकिन काम उसने बराबर सही किया, क्योंकि आदम का ही फोकस खराब था। आदम उसके लंबे बालों में उलझा पड़ा था, क्योंकि आदम टकला होगा। नाउ लिसन, अब सुनो, मी माझ्याबद्दल बोलत नाहीये। लिसन एवरीबॉडी। सभी सुनो। सो तो क्या है, पवित्र getting filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, we have to work on our flesh. हमें हमारे शरीर के लालसाओं पर काम करना है। We have to crucify them. हाँ, हमें उन्हें सूली पर चढ़ाना है। Yeah, we have to die to those lust of the flesh. और हमें उस शरीर के लालसाओं को मरना है। And we have to nurture the nature of Christ. और खुदा के फितरत को खुद में बढ़ाना है। Verse 17 declares, और वचन 17 घोषित करता है, if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. Hallelujah. और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। Amen. Amen. So now when we have got the Holy Spirit, तो अब जब हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है, we have become the heirs, joint heirs with God. हम तो वारिस बन चुके हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए वारिस हम बने हैं। Amen. Amen. Now we know what the problem is. आपको पता है कि समस्या क्या है? The moment I hear such words, कि जैसे ऐसे अल्फाज मैं सुनता हूँ, for example, उदाहरण के तौर पर, I am seated with Christ in heavenly places. मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हूँ, I'm joint heirs with God. मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूँ। ये सब बातें सुनने के लिए अच्छी लगती है। Come on, how many agree with me? चलो, कितने लोग मेरे साथ सहमत है? Amen. Amen. या सगळ्या गोष्टी ऐकायला फार चांगलं वाटतं, बट लिव्हिंग अ प्रॅक्टिकल लाईफ, लेकिन एक व्यक्तिगत जिंदगी जीने के लिए या फिर एक प्रॅक्टिकल जिंदगी जीने प्रैक्टिकल जिंदगी जीने के लिए इट्स टफ. ये बहुत ही मुश्किल है। Amen. Amen. Now I'll tell you why. और अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। How many are ready? कितने लोग तैयार हैं? Amen. Amen. I'm going to close the message now. और यहाँ पर मैं संदेश बंद करने वाला Very हूँ। important key I'm giving you the last. बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी है, या आखिर में आपको दे रहा हूँ। You know, why did not the nation of Israel, that generation, reach the promised land? आपको पता है कि इज़राइल राष्ट्र की वो पीढ़ी जो है, वो वचनदत्त भूमि, वो क्यों नहीं पहुंचे? I tell you the answer. मैं आपको जवाब देता हूँ। The Bible says, बाइबल कहता है, any human that is in the flesh कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान जो शरीर में है, जो शारीरिक है, cannot understand the things of God. वो परमेश्वर के चीजों को समझ नहीं पाता। Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा Now here हूँ? it comes. Don't miss it. और ये आता है आपके पास, इसे मत गवाओ। Watch everybody. सभी ध्यान से देखो। I have left Egypt. I'm the nation of Israel. I'm the nation of Israel. I've left Egypt. I'm on the way traversing to the promised land. मैं इज़राइल का राष्ट्र हूँ और मैंने मिस्र देश को छोड़ दिया है और मैं वचनदत्त भूमि की तरफ मैं सफर कर रहा हूँ, But my mind लेकिन मेरा मन is in the flesh. अभी भी शारीरिक है।
Amen. It's in the flesh. वो शरीर में ही गड़ा हुआ है It's looking at the things of the flesh. और इस शरीर के चीजों के पास ही देख रहा है। I need mutton to eat. मुझे मटन खाने के लिए, I need everywhere nice and wonderful water everywhere. और मेरे आसपास सब कुछ अच्छा पानी होना I चाहिए, want lots of peace everywhere and cloud over my head. I need all good things around me. और मुझे मेरे आसपास सभी जगह पर शांति और मेरे सर के ऊपर घनमेघ होना चाहिए और सब कुछ अच्छा होना When चाहिए। everything is good around me, जब सब कुछ मेरे आसपास अच्छा है, I am happy believer. उस वक्त मैं खुश विश्वासी हूँ। Amen. Amen. But the moment anything goes wrong, लेकिन जैसे कुछ खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, I've very rarely seen believers in the midst of a crisis smile and give praise to God. देखो मैंने बहुत कम देखा है कि मसीह लोग जो है वो संकट के बीचों बीच हंसते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। I've rarely seen believers, rarely. मैंने ऐसा देखा ही नहीं, बहुत Yeah. कम। But more believers I have seen, I can say 95% believers, लेकिन 95% मसीह में लोगों को मैंने देखा है that whenever they have got a crisis, a problem in their life, कि जब कभी उनके जिंदगी में कोई समस्या आ जाती है, so they behave as if there is no God in heaven above. वो रोने लगते हैं और वो ऐसे बर्ताव करते हैं कि जैसे स्वर्ग में कोई खुदा है ही नहीं। That is, they behave as if there is that God has no plan over their lives. और वो ऐसे बर्ताव करते हैं कि उस खुदा के उनके जिंदगी में कोई योजना है ही नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this. इसे सुनो। God's plan starts from bad situations. और परमेश्वर की योजना जो है बुरी समस्याओं से शुरू होती है। Amen. आमेन। म्हणून तुम्ही समस्यामध्ये हसायला शिकलं पाहिजे. आमेन। इसलिए आपको समस्याओं में हंसना सीखना है। उपकार स्तुति द्यायला पाहिजे. आपको उपकार स्तुति करना चाहिए। माहौल जब खराब हो तब आपको आराधना करनी है. आमेन। ये आदत डाल दो, आमेन। क्योंकि परमेश्वर की एक योजना जारी है. ये आपका विश्वास इधर चाहिए, विश्वास. आमेन, 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 Amen. आमेन। You can't. It's a physical man can't smile in the midst of a furnace. देखो एक शारीरिक व्यक्ति भट्टी के बीचों बीच हंस नहीं सकता। Yeah. A physical man can't give praise in the lion's den. और एक शारीरिक व्यक्ति जो है वो सिंह के गुफा में वो परमेश्वर को स्तुति नहीं दे सकता। Yeah. हाँ, Let alone pray. प्रार्थना छोड़ ही दो. You man who is in the flesh, और एक व्यक्ति जो शारीरिक है, जो शरीर में है, जो शरीर में है, जो शरीर की लालसाओं पे ध्यान देता है, कुछ भी थोड़ा हो गया, their smile depends on the circumstance. और उनके चेहरे की मुस्कान जो है उनके आसपास हालात कैसे है उस पर निर्भर है। हाँ, त्यांच्या बाजूचा परिसर नीट असेल, अगर उनके आसपास के माहौल ठीक है तो क्लोजअप घे, थोड़ा बहुत खड़ा असंच करेक्ट. थोडंसं काय झालं, थोडंसं वाकडे, थोड़ा सा भी कुछ बिगड़ जाए तो ऐसे। but लेकिन when things are fine, जब सारी चीजें अच्छे हैं, that is not a person who is led by the Holy Spirit. देखो ऐसा व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। हाँ, ऐसा व्यक्ति अपने शरीर के लालसाओं के द्वारा चलाया जाता है. आमेन। और ऐसे व्यक्ति का परमेश्वर के अभिवचन में जाना बहुत मुश्किल है, आमेन। बहुत मुश्किल है. Whenever you are in Christ, जब कभी भी आप मसीह में होते हो, Jesus, the word says clearly, और वचन बहुत साफ साफ कहता है,
In all things give thanks unto the Lord, for this is the will of the Father for you in Christ Jesus. कि सारे चीजों में खुदा को धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में खुदा की इच्छा तुम्हारे लिए यही है. या हाँ, लोकांना हे वचन नाही समजत सुनू हिंदीमध्ये. और लोगों को ये वचन समझ में ही नहीं आता है हा. काय म्हटलेले? कि सारी चीजों में सर्व गोष्टीमध्ये तुम्ही उपकार स्मरण करा. सर्व गोष्टीमध्ये. मोठ्याने बोला माझ्या मागे. सर्व गोष्टीमध्ये. सर्व गोष्टींमध्ये. गुडघ्याला सूज आली आहे, उपकार स्मरण करा. घरामध्ये तुमचं कोणी ऐकत नाही, उपकार स्मरण करा. घरामध्ये भांडणं सुरू होते, उपकार स्मरण करा. का? कारण पित्याची इच्छा तुम्हाकरिता हीच आहे. अशी ही इच्छा आहे. मला वाटलं चांगली इच्छा असेल. किती लोक 1990च्या आधी जन्मलेले आहेत. हात वरती करा. और कितने लोग यहाँ पर 1990 साल इसके पहले आप पैदा हुए हो? 1990. 1990 से पहले. ओके. सिस्टर 2000. अच्छा. ओके गुड. ठीक है, अच्छा है. किती लोकांनी ते फिल्मचे कॅमेरे बघितले? फिल्मचे. अभी समझ में आया. ती रील होता. रील ते फोटोग्राफर काय करायचा? फोटो काढल्यानंतर काय करायचा? धुवून काढायचा. कशा? रिननी धुवायचा. कशाने? टाईड सर्फ एक्सेल. कशाने? कशाने धुवायचा तो? सोल्यूशन. कशाने धुवायचा? रिन, टाईड, सर्फ एक्सेल. मग कशाने? त्याच्याने काय लिक्विड असायचं धुवायचा. कुठे धुवायचा? रस्त्यावर उभं राहून. मग अंधारी खोलीमध्ये, अंधारमय खोलीत जायचा आणि तिथं तो रील उघडायचा लाल लाइट खाली. अगर लाल लाइट के नीचे अगर खोलेगा नहीं, ऐसे प्रकाश में खोलेगा तो पूरा व्हाइट हो जाता था वो. उसको वो अंधियारे खोली में ही उसको खोलना पड़ता है, क्योंकि वो नेगेटिव है. नेगेटिव और नेगेटिव से डेवलप होता है पॉजिटिव. अगर आप आपके नकारे हरकत नकारे समयों पर नकारे जो भी आपके जिंदगी में चल रहा है ना सिचुएशन, उस पे अगर आप सही लाइट के नीचे उसको नहीं देखोगे ना, तो आपका नेगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं बनने वाला. आपको सही लाइट के नीचे देखना है. इसका मतलब ब्लड लाइन, इसका मतलब लाल लाइट, इसका मतलब ब्लड का लाइट के उसको देखना है, तो ही वो पॉजिटिव में होगा. सब आपके नजरिए पे निर्भर है. कोई हमें चिल्लाएगा क्या? Learn to see every bad situation in a red light. और हर एक नकारे परिस्थिति को लाल प्रकाश में देखना सीखो. इसका मतलब यीशु मसीह के लहू के नीचे देखना सीखो. इसका मतलब यह है, अगर मैं यीशु में आया हूं तो मेरा बुरा कभी नहीं हो सकता. मैं मृत्यु से भरी दराई से जाऊंगा सही, लेकिन जिंदा बाहर आऊंगा. मेरा नाश कभी हो ही नहीं सकता. आमेन. आमेन. जोर से. आमेन. माझा नाश होऊ शकत नाही, कारण मी येशूच्या रक्ताशी जोडलेलो आहे. जर का वेळेस आधी मला जर का मृत्यू आला ना, तरी कबर म्हणालेला बाहेर थुका, ह्याला बाहेर थुकून टाक, कारण हा इकडचा नाहीये. This happens when you have faith. ये तब होता है जब आपके पास
विश्वास होता है। विश्वास किसके ऊपर? यीशु मसीह के लहू के ऊपर। आमेन। Come on! चलो People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन सुनो। And the last point is, और आखिरी मुद्दा है, I need to have a belief system on the bloodline. और मुझ में एक विश्वास प्रणाली होना जरूरी है, वो भी उस लहू के वंश पर। Amen. आमेन। रक्ताच्या वंशाळीवरती मला तो विश्वास असणं गरजेचं आहे. ज्या रक्ताद्वारे एवढे लोक बरे होतात, माझा नाश कसा काय होईल? आमेन। हा? ज्या माणसाच्या वस्त्राच्या काठाला जरी स्पर्श केला तरी लोक बरे व्हायचे. माझ्या जीवनामध्ये हा नुकसान होऊ शकत नाही. आमेन। मी याला स्वीकारतच नाही. आमेन। सैतानाची इच्छा आहे मी दुःखी व्हावं, मी दुःखी होणार नाही. माझ्या जीवनामध्ये किती मनोबाध असू द्या, मी नाचणार, उड्या मारणार, कारण मला उत्तर मिळालंय. आमेन। People of God, परमेश्वर के लोगों, इसको कहते हैं वही इंसान जो यीशु मसीह के लहू में जुड़ा हुआ है, जिसके पूरे नस नस में यीशु के लहू की फितरत बह रही है. आमेन, फितरत आमेन, बह रही है. प्रभू येशू ख्रिस्ताचं हा गुणधर्म त्याच्यामध्ये वाहत आहे. क्रूसावरती लटकून असताना सुद्धा पित्या ह्यांना क्षमा कर, कारण हे नाही जाणत हे काय करतात. कम ऑन, चलो माझ्या मेरे शरीर के चिंदड़े कर दिए, लेकिन फिर भी क्षमा करने की ताकत मुझ में है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। ये वही कर सकता है जो राज्य करता है. आमेन। जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, वो ही कर सकता है. नॉर्मल इंसान की बात है ही नहीं है. आमेन। नॉर्मल मनुष्य हे करू शकत नाही. त्याचे विचार खालचे आहेत ना, तो हे करू शकत नाही. तोच हे करू शकतो त्याचे विचार स्वर्गाचे आहेत. विचार करा, ज्या लोकांनी येशू ख्रिस्ताला मारलं ते जेव्हा मेले आणि ज्यावेळेस त्यांनी येशूला पाहिलं असेल, कुठे जाऊ, काय हालत झाली असेल त्यांची. तू हो मी, मग क्रूसावरतीच आम्हाला का नाही उधळून टाकलं? तुझ्याकडे ताकद होती, तू पुत्र आहे. त्यासाठी नव्हतं आलो रे, तुझं तारण करायला आलो होतो. आमेन। तू मला ओळखलं नाही, हा प्रॉब्लेम तुझा आहे. आमेन। तुझ्या तारणासाठी मी वधस्तंभावरती मरण्यासाठी आलो होतो. आमेन। ती जागा ती नव्हती, आत्ता ती जागा आहे. आमेन। आमेन। तुला उधळून फेकायची. हर चीज का समय होता है. बोलो बाजू वाले को, हर चीज का समय होता है। फिर से एक बार बोलो, हर चीज का समय होता है। आमेन. आमेन। वैसे ही आपके समस्याओं का भी समय होता है. आमेन। आपके जिंदगी में ये दिन वापिस नहीं आने वाले. आमेन। बहुत भारी दिन आने वाले. मैं अच्छे दिन नहीं बोलूंगा, बहुत भारी दिन आने वाले. क्या बात, चलो बजाओ। people of God, परमेश्वर के लोगों, I need a belief system. मुझ में एक विश्वास प्रणाली होना जरूरी है। Amen. I'm closing over here now. और यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ। चौथ्यांदा बोलतोय ना मी. Yes, okay. I'm closing over here now. अब यहाँ पर मैं मेरे बंद कर रहा हूँ। गाड़ी को ब्रेक नहीं है, प्रॉब्लम ये है. Now listen everybody. आप सभी सुनो। See, देखो, how can I give you this example? देखो ये उदाहरण मैं आपको कैसे दूँ? कैसे दूँ? Okay, let me say, if how many can see these halogens? चलो कितने लोग इस हैलोजन को देख सकते हैं? Amen. आमेन। Is it powerful? Are they powerful? क्या ये सामर्थ्य है? Amen. Amen. Okay. Now, do you know? अब क्या आपको पता है? We have arranged a special generator with a huge capacity to run these halogens. और हमने एक विशेष जनरेटर तैयार किया है इन और जिनकी क्षमता बहुत ज्यादा है इन हैलोजन को चालू रखने के लिए. And those small bulbs, और ये जो छोटे छोटे बल्ब है, they are working on this same line of electricity that is flowing from here. और वो
इलेक्ट्रिक बिजली की जो तार यहां से आ रही है उसी पर वो चल रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है. This same halogen यही हैलोजन is using the same electrical point. और वही बिजली के तार का इस्तेमाल कर रहे हैं। And Amen. this bulb also और ये बल्ब भी is using the same point. उसी पॉइंट से है, Yet, फिर भी these are burning more brightly ये ज्यादा प्रकाशमान है and that one lower. और ये कम। You know why? आपको पता है क्यों? Belief system. विश्वास प्रणाली, Their belief system is more. इनका विश्वास प्रणाली ज्यादा है, That's why they shine more. इसलिए वो ज्यादा चमकते हैं। His belief system is very small. लेकिन इनके विश्वास प्रणाली जो है वो बहुत ही छोटे हैं, That's why they glow small. इसलिए वो छोटा चमकते हैं। Yeah. सारा विश्वास प्रणाली का खेल है. बोलो बाजू वाले को. आमीन। सारा विश्वास प्रणाली का खेल है। बोलो 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 बोलो. सारा विश्वास प्रणाली का खेल है। देखो, everyone has left Egypt and on the way to the promised land. Amen? देखो, सभी जन ने मिस्र देश को छोड़ दिया है और सभी जन उस सफर पे है वचनदत्त भूमि की तरफ जाने के लिए। Amen. आमीन। If I believe, अगर मैं विश्वास रखता हूँ, आगे क्या रखे है क्या मालूम, क्या होगा कि नहीं क्या मालूम. वो मिस्र में अच्छे थे. अपन वो थाली के बाजू में बैठ के मटन तो खाती थी. इधर खाने को कुछ नहीं है, इधर ऐसा, इधर रेगिस्तान में जा रहे हैं, इधर इतना धूल का चटका बैठ सकता था. लेकिन अभी ये ऊपर बादल है इसलिए सब कुछ ठीक है. लेकिन अब ये मूसा को कुछ खो गए तो किधर जाएंगे? मेरे तो किधर जाएंगे? समझ में नहीं आया था किधर तो जाएंगे। उससे अच्छा पहले ही चलो वापिस मिस्र में. इधर एटलीस्ट वो अच्छा जगह. तुम्हारा आइडिया अच्छा है। फिर मैं इधर में के मुंह से के सुन के इधर आया, मेरे को दिमाग खराब हो गया मेरे. ओके, और रास्ते में इतना तकलीफ था. वो बीच में जो लाल समुद्र आया, अच्छा हो गया काठी मारा तो दो भाग में हो गए वो. वो बात सही है। ये अब ये काठी टूट गई तो क्या करेंगे? करेक्ट। अच्छा हो गया। काठी टूट गया तो क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरी प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर उसका काठी का क्या गारंटी है? उसका भी क्या गारंटी है? इतना बूढ़ा आदमी जाम चल रहे. फिर क्या? और वो यहोशू खाली पीली आजू बाजू में भटकते उसके पीछे पीछे. यहोशू भी अक्कल ने डोके में किधर भी कुछ करेंगे. ऐसे अगर मैं सोचे तो मेरा ऐसा रहेगा. कोई आमेन मनल. आमीन। See, listen. देखो, सुनो, If I'm a man of the flesh, अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो शारीरिक है, then my whole focus will be only on the flesh. तो फिर मेरा पूरा ध्यान शरीर शारीरिक ही होगा And I will have no faith, zero faith. और मुझ में विश्वास होगा ही नहीं, शून्य विश्वास. Yeah. हाँ, No guarantee what God and His plan. और खुदा की योजना पर और खुदा पर कोई गारंटी नहीं. Nothing, zero. कुछ भी नहीं, शून्य, कुछ भी नहीं. Why? क्यों? Because my whole focus only flesh. क्योंकि मेरा सारा ध्यान शरीर के चीजों पर ही, शरीर के चीजों, शारीरिक. Now, अब but if I'm a person of the spirit, लेकिन अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो आत्मिक है, I know मैं जानता हूँ that my God, if He has brought me out of Egypt, कि मेरा खुदा अगर उसने मुझे मिस्र से बाहर निकाल लाया है, then something really awesome is waiting for me there. तो फिर मेरे लिए वहां पर कुछ तो अद्भुत रुका हुआ है. Why? क्यों? Because my God is awesome. क्योंकि मेरा खुदा अद्भुत है. आमीन. Ah, हाँ. do you know something? क्या आपको कुछ पता है? When Jesus rose from the dead, जब यीशु जी उठा, मृत्यु से जी उठा, those who were righteous people, sleeping, means those who were dead, जो धार्मिक थे और जो मरे हुए थे, जो धार्मिक मरे हुए, जो धार्मिक मरे हुए थे, even they rose up. वो भी जी उठे. इसका मतलब what does it mean? इसका मतलब क्या है? That whenever God does anything, कि जब कभी खुदा कुछ भी करता है, the power is so huge, वो सामर्थ इतना बड़ा होता है, so huge, इतना बड़ा, so awesome, इतना अद्भुत, that it can create an impact for many other people also. कि उसका प्रभाव बहुत ज्यादा दूसरे लोगों पर भी हो सकता है. आमेन. आमेन. येशूच्या कबरेच्या बाजूला असणं
त्यांचं सौभाग्य झालं. आमेन. 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 काय नशीब त्यांचं. मी नशिबाला मानत नाही, पण काय नशीब त्यांचं की येशूची कबर त्यांच्या बाजूला होती का, लाईनीमध्ये होती का, आसपास होती, त्या कब्रस्थानात होती. आमेन. आमेन. येशू पुनरुत्थित झाला आणि हे पण उठले. हमको उठाया गया है क्यों? क्योंकि वो जिंदा हो गया है. आमेन. इतना पावर, खुदा का नेचर ऐसा है. आमेन. आमेन. देव जेव्हा पेढे वाटतो ना, तो तुम्हाला एकट्याला वाटत नाही. तुमच्या बरोबर 2-3-20 लाख पेढे असेच पडतात. आमेन. 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 देवाची मूठच अशी आहे. आमेन. दिस इज द नेचर ऑफ गॉड. ये तो खुदा की फितरत है. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के एवरीबॉडी. परमेश्वर के लोगों सभी ने इसे सुनो. It's you and I need to understand. देखो, आपको और मुझे ये समझना जरूरी है. The power of God is uncomparable, that is flowing, flowing and flowing and flowing. और परमेश्वर का सामर्थ जो है उसकी तुलना हम नहीं कर सकते, और वो बस बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है और बह रहा है. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we can ask or think. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है. Ephesians 3:20. इफिसियों की पत्री इसका 3 अध्याय वचन 20. What we can imagine, और जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, what we can ask, जो हम मांग सकते हैं, his power is working way high, way higher than what we can think and imagine. और उसका सामर्थ जो है बहुत ऊंचा, जितना हम सोच सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं, तो उससे कई ज्यादा अधिक ऊंचा है. And his power can work, is working. और उसका सामर्थ जो है काम कर रहा है, कार्यरत है. But लेकिन it is working through us. वो हमारे द्वारा कार्यरत है. प्रॉब्लेम आपण आहे. बोला एकमेकाला. प्रॉब्लेम आपण आहोत. पुन्हा बोला. प्रॉब्लेम आपण आहोत. या. हा. बोला एकमेकाला. आपण आहे ना नरसाळे आहोत. बोला. आपण नरसाळे आहोत. पुन्हा बोला. आपण नरसाळे आहोत. नर्स नाही, नरसाळे. बोला नरसाळे. नर्स नहीं, नरसाळे. How you seen a funnel any time? क्या आपने फनल देखा है कभी? नरसाळा, नरसाळा. नरसाळा देखा है. Whatever. नरसाळा देखा है. I don't know what you call it in Hindi. Now listen everybody. अब सभी सुनो. It is big at the top वो ऊपर बड़ा होता है, and passes down very narrow. लेकिन नीचे आते आते बहुत ही छोटा हो जाता हे है. आपला प्रॉब्लेम आहे. देव फार प्रचंड मोठा आहे. हा, देव फार महान आहे. पॉवर अमेझिंग आहे. शब्दात ताकद आहे. शब्दात आमेन. आमेन. शब्दात आमेन. प्रकाश हो झाला. पॉवर आहे. आमेन. पण आपल्याकडे नरसाळे. आमेन. आपण जातो, देवा अर्धी भाकर दे. आता माझे हात एवढे मोठे, अर्धी कशी तोडू मी? रोजची भाकर तू आम्हाला दे, असं तुम्हाला शिकवलेले प्रभू. आम्हाला अर्धीच दे. अरे आता अर्धी कशी देऊ? मी उरलेले तुकडेच 12 टोकऱ्या भरून उचलल्या. आमेन. आमेन. देवा आम्हाला 1 BHK दे. 1 BHK यार. अख्खी पृथ्वी माझी. काय लायकीप्रमाणे माग ना बाळा. लायकी बघ. माझं मी कोण, तू कोण, कसं माझ्या राज्य ठिकाणा बसलेले, काय मागते. आमेन. समजतंय का? एक मग बोला बिलीफ सिस्टम. बोलो बिलीफ सिस्टम. विश्वास प्रणाली. बोलो विश्वास की प्रणाली. बोलो विश्वास की प्रणाली. फिर से एक बार. विश्वास की प्रणाली. प्रभू माझ्या ह्या मुलीला आज्ञाधारक बनव. अरे काय मागत आज्ञाधारक? ते तुला बनवायची, तुला करायची. तू योग्य ते माग. काय मागू? काय मागू मी? तू माझ्या समागमात बस आमेन. आणि माझ्या गौरवाने भरून घे. आमेन. कळत आहे का? आमेन. आमेन. जो डोकं ठिकाण्यावर घेऊन ये. आमेन. देवा मला माझं डोकं ठिकाण्यावर आणण्यासाठी मदत कर. ही योग्य प्रार्थना. आमेन. नरसाळा नको प्रभू, मला पाईप पाहिजे मोठा. आमेन. आमेन. मला मोठाच्या मोठा पाईप पाहिजे प्रभू. आमेन. 2000 इंचाचा. आमेन. तुझ्या लायकीप्रमाणे प्रभू मोठा पाईप. आमेन. मग सगळं असं बदबद बाहेर निघू दे. सगळं असं वृक्ष.
You know, that's how you see, think about it. आप देखो इसके बारे में सोचो, This woman with the issue of blood, ये औरत जिसे लहू बहने की बीमारी थी, she was not allowed to come out, उसे तो परवाना नहीं था कि वो बाहर आए, but she came. लेकिन वो आई. आमेन. Amen. आमेन. My first question to her, मेरा सबसे पहला सवाल उसको ये how है, did you have this audacity? तुझ में इतना जिगरा कहां से आया? अगर तेरे को लोग पकड़ते तो मारते थे तेरे को, तूने सोचा नहीं? अरे सोचने के लिए बॉडी चाहिए ना, बॉडी गड़न पड़ले ऐसा. अभी मैं जीव का सोचू, आमेन. कोई मेरे से बात करो, कमान. आमेन. मला जगणं महत्वाचं वाटलं बाबा विचार करण्यापेक्षा. आमेन. 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 आता मग तुला येशूने धरलं असतं तर आणि त्यांनी धोडमार करायला लावली असती तर, ते मला नाही माहिती, मला फक्त बरं व्हायचं होतं बस. आमेन. 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 आता बघा ती आली, वो आई वो बाद में आने के बाद वो घुस के उसने, मैं कुछ बोलने वाला हूं, बहुत बहुत पावरफुल है, उस घुस के उसने चंगाई चुराई. आमेन. आमेन. तिने आरोग्य चोरलं. आणि प्रभू काय नाही म्हटला, कारण प्रभूचं म्हणणं काय माहितीये का, वायफट जाण्यापेक्षा कोणीतरी उपयोग करावा. Come on! People of God, असा आपला प्रभू आहे. आमेन. प्रभूचे आशीर्वाद ओतप्रोत वाहत असतात. तो एक झरा आहे, कधी न संपणारा, कधी न संपणारा. आपण घेत नाही, चूक आपली आहे. आमेन. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, तुमचा प्रभू हा कधी न संपणारा झरा आहे. आपका खुदा कभी न खत्म होने वाला झरना है. You have to get connected and just believe, 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 believe. बस आपको जुड़ना है और विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, विश्वास रखना है और बस विश्वास रखना है. आमेन. आमेन. तुम्हाला जर का 2 BHK फ्लॅट पाहिजे असेल तर अशा बिल्डिंग कडे जा किंवा अशा बंगल्याकडे जा. आणि प्रभूला म्हणा, प्रभू मला ह्या ठिकाणी मला बंगला बांधायचा आहे, मला ह्या ठिकाणी बंगला बांधलाय येशूनामध्ये बांधलाय येशू. तुम्ही म्हणाला काय चाललंय, अरे बोल ना, बोलने को क्या जाता है. आमेन. बोलने को क्या जाता है, अंधियारे भरे पूरे दुनिया में उजियाला हो जाता है. कमान. Saints of God, am I talking to somebody here? परमेश्वर के संत गणों, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. Ephesians 3:20 says that the power of God worketh in us. और इफिसियों के पत्र इसका 3 वचन 20 ये कहता है कि खुदा का सामर्थ हम में कार्य थे. हाँ, अगर हमने खुद को फैला लिया तो पावर भी वैसा ही आएगा बाहर. आमेन. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? This sister Swati, she went to that boss, the manager, and she said, she went many times over there. She said that, I want a loan. They were not making a stand also. और ये सिस्टर स्वाति जो है वो बैंक मैनेजर के पास कई दफा गई, बहुत बार गया और बहुत बार गई और उससे कहा कि मुझे लोन चाहिए, लेकिन उन्होंने उस वहां पर खड़ा भी नहीं किया. Loan से दिला loan से. Now listen everybody. आप सभी सुनो. But लेकिन when she gave a partner's amount, जब उसने पार्टनर्स के बीज उसने बोया, she got connected to the boss of the universe. वो जो इस ब्रह्मांड का बॉस है उसके साथ वो जुड़ गई. Where the planets run according to his will. जहां पर ग्रह जो है उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं. Where the meteors don't turn their paths until it is his will. और जहां पर धूमकेतु जब तक उसकी इच्छा नहीं होती तब तक मार्ग बदलते नहीं. Where the seas obey and maintain their boundaries. जहां पर समंदर आज्ञा का पालन करते हैं और सीमाओं को बनाए रखते Where हैं. the earth only quakes a bit according to his will. और जहां पर धरती बस थोड़ी सी कांपती है उसके इच्छा के अनुसार. And people of God, और परमेश्वर के लोगों, when she gave the partner's amount, she became partners with him. और जब उसने वो पार्टनर्स का अमाउंट या बीज उसने बोया तब वो उसके साथ पार्टनरशिप में जुड़ गई. And when she went and sat before the manager that time, और जब उस बार वो उस मैनेजर के सामने जाकर बैठी, the manager asked her, मैनेजर ने उससे पूछा, how much loan? Okay, done. कितना लोन चाहिए? ठीक है, हो गया, ले Go. जा. Done. जा. You know why? आपको पता है क्यों? Because boss बोला. आमेन.
मेरी बच्ची को लोन चाहिए, लोन। अगर उसका विश्वास और बड़ा होता, उसको लोन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही कार्य करता है। आमेन, ये प्रॉब्लम परमेश्वर का है। आमेन, अगर आपके पास विश्वास है कि लाजर के हाथ पैर मसाज करने के बाद वो उठेगा, तो लाजर हाथ पैर मसाज करने के बाद ही उठेगा। आमेन, लेकिन अगर आपका विश्वास है कि लाजर के कब्र के बाहर खड़े होकर चिल्लाने के बाद उठेगा, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आएगा। आमेन। Come on! People of God, परमेश्वर के लोगों, you need to understand. आपको ये समझना जरूरी है। If you have no faith, even the whole power of the universe can't help you. अगर आप में विश्वास नहीं है तो इस ब्रह्मांड का जो सारा सामर्थ्य है वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके पास विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। आमेन, आमेन। Come on, come on, come on, come on. चलो 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 चलो। So, people of God, तो परमेश्वर के लोगों, I'm closing here now. यहाँ पर मैं अब बंद कर रहा हूँ। And my point is, लेकिन मेरा मुद्दा ये है, today am I in the bloodline? आज क्या मैं उस लहू के वंश में हूँ या नहीं? Amen. आमेन। मी त्या रक्ताच्या वंश। नाही लकीर, लकीर, what do you say? नाही वंशाळी नाही, लकीर, लकीर मराठी क्या मैं उस लहू के मी लकीर, त्या रक्ताच्या रेषेमध्ये आहे का? म्हणजे मी असा वागतो, असा राहतो का की जणू काही मला ख्रिस्तच माहिती नाहीये? क्या मैं उस लहू के लकीर के अंदर जीता हूँ? क्या मैं, या फिर मैं क्या ऐसा जीता हूँ कि मुझे मसीह पता ही नहीं? And am I showing forth the characteristics of the bloodline of Jesus? और क्या मैं उस लहू के वंश यानी प्रभु यीशु मसीह की फितरत मुझ में से दिखा रहा हूँ या नहीं? People of God, परमेश्वर के लोगों, am I showing faith towards His plan? क्या मैं परमेश्वर की योजना की तरफ विश्वास दिखा रहा हूँ? People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever any problem comes in your life, जब कभी भी कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में आती है, I want to close with the amazing example of the Lord just gave me just now. और जो एक अद्भुत उदाहरण देकर जो प्रभु ने मुझे अभी अभी दिया है, ये देकर मैं बंद कर रहा हूँ। How many of you ever polished black shoes? और Black कितने shoes. लोगों ने कभी काला शू पॉलिश किया है? काला शू पॉलिश किया है? क्या करते हैं? What do you do? What do you do? आप क्या करते हो? You क्या करते first हो? take a nice cloth, आप सबसे पहले एक अच्छा कपड़ा ले लेते हो, wet cloth, moist cloth, या गीला या थोड़ा सा गीला कपड़ा, and then you clean the shoe. और उस शू को आप साफ करते हो, Amen. जूते को साफ करते Then हो। what do you do? उसके बाद आप क्या करते You हो? take black polish, उसके बाद आप काला पॉलिश लेते हो, right? सही, Apply over the black shoe. और उस काले जूते पर आप लगाते हो। And then what do you do? उसके बाद आप क्या करते हो? After 1 hour or 15-20 minutes, whatever, 15-20 मिनट के बाद या फिर 1 घंटे के बाद you rub over the shoe. आप उस जूते को घिसते हो And then it starts shining. और फिर वो चमकने लगता है। Hear this, everybody. ये सभी जन सुनो, To make a black shoe shine, एक काले जूते को चमकाने के लिए you have to make it more black first. आपको उसको सबसे पहले और ज्यादा काला बनाना पड़ता है। आमेन। So stand up, everybody. आइए इस वक्त हम सभी जन